Chintan IM is organizing Ayurveda Abhyasanam, national level lecture series for BMS and PG Ayurveda scholars. Good evening, one and all. Myself, Dr. Snehal Metangle, PG scholar of Sahita Siddhant Department from Wardha. Main aim of this Ayurveda Abhyasanam is uniting BMS minds across the nation to explore, to learn, and advance Ayurveda. Before we proceed, let us seek the blessings of Lord Dhanvantari for wisdom and good health. So, I would like to welcome Dr. Padmaja for Dhanvantari Stavan. ॐ शङ्खं चक्रं जलोकां दधतं मृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मा स्वच्छ अतिरुद्य अंशुकपरविलसन्मौलिं भोजनेत्रम् कालाम्भोजो उज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णु स्वरूप श्रीधन्वन्तरी स्वरूप श्री 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 औषधचक्र नारायणाय नमः ॐ Thank you. Thank you, Dr. Padmaja. So, now I would like to welcome Dr. Manoj Kumar Chaudhary sir to introduce our special guest, Dr. Lam Lade sir, who is Sahasachiv of Arogya Bharati, Paschim Maharashtra Pranta. Yeah, am I audible, ma'am? Yes, sir, you're audible. Yes. So first of all, I welcome our special guest. He is family member of Arogya Bharati actually. Sahasachiv Arogya Bharati, Paschim Maharashtra Prant, Honorable Dr. Ram Ladeji. So he is a prominent and highly respected medical professional based in Sangli, Maharashtra. He is primarily known for his leadership at Vivekananda Multi-Speciality Hospital and Research Center. He is a consultant, senior consultant there, and administrator also. He has patient-centric approach with many describing him as a compassionate practice. We can see many patients from Sangli and around that area. He's a general surgeon. Basically, he is Ayurveda physician and master in surgery, practicing more than 25 years in this medical field, and especially in as a general surgeon and senior consultant, he is very famous and renowned personality. I welcome Dr. Ram Lade to enlighten us on this Ayurveda Abhyasanam series. Also, I would like to welcome our Sachiv, Secretary, Dr. Santoshji Gatne, Arogya Bharati Paschim Maharashtra Pranta. I also welcome today's our guest speaker, my friend, Professor Dr. Jayanji Ingre. Dr. Ram Ladeji, please. सबको बहुत बहुत नमस्कार। एक तो मैं इस जो आयुर्वेद अभ्यास सीरीज जो है उसके लिए मुझे बुलाने के लिए सबको संयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र और आरोग्य भारती के प्रांत के कार्यकर्ता डॉक्टर मनोज चौधरी के नेतृत्व में पिछले कई दिन से हम आयुर्वेद अभ्यास सीरीज शुरू किए हैं
और उसके लिए बहुत सारा पूरे देश भर से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इसी माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है और हमारे बीच का जो संवाद है वो भी बढ़ सकता है। आरोग्य भारती के माध्यम से ये जो पहल शुरू हुई है उसका निश्चित स्वरूप हमारे प्रैक्टिस में, हमारे ज्ञान में और हमारा जो संवाद है उसके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो आज के जो वक्ता है डॉक्टर जयंत जी इंगले, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो आज यहाँ पे गेस्ट लेक्चर करके है, और मुझे बुलाने के लिए पर फिर एक बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Manoj sir. Thank you, Ram sir. Now, without further delay, I honored to introduce our respected guest, Dr. Jayant Pundlik English sir. Dr. Jayant sir is professor in S.S. Agrawal Institute of Ayurveda, Navsari, which is in Gujarat. He got his BMS degree in 2009 from Sri Ayurved Mahavidyalay, Nagpur, and he completed his MD in Sahita in 2014 from BSD TS Ayurved College, Pune. He has done outstanding work in manuscript edition of Langan Patya Nirnay and published research papers. So, I now respectfully invite Dr. Jayant sir to address the gathering and share his valuable words on Dincharya Adhyay. थैंक यू मैडम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, चीफ गेस्ट और आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सह सचिव डॉक्टर राम लाड़े सर, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत आरोग्य भारती के सचिव डॉक्टर संतोष जी गटने सर, डॉक्टर मनोज चौधरी सर, इन सभी को मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और पुनश्च एक बार इस उपक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये उपक्रम कंटिन्यू शुरू किया है। सर, इसका फायदा बहुत सारे विद्यार्थियों को हो रहा है। अनेक विद्यार्थी अलग अलग शिक्षकों से अलग अलग विषय यहाँ पर सीख रहे हैं। ये अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आरोग्य भारती की तरफ से शुरू हुआ है, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी और समस्त गुरुओं को अभिवंदन करते हुए मैं आज का ये व्याख्यान शुरू करता हूँ। एक्चुअली इसका एक सत्र हमारा पहले ऑलरेडी हो चुका है दिनचर्या अध्याय का, जिसमें हमने दिनचर्या ये देखी थी। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 2, ऐसा हमारा ये सिलेबस का पॉइंट था। प्रथम वर्ष के संहिता अध्ययन 1 इस विषय के लिए टॉपिक आता है। तो उसमें से दिनचर्या हमने लास्ट टाइम देखा था, जहां तक ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत वहां से लेकर स्नान तक के विधि हमने सभी देखे थे। थोड़ा सा समय की कमी के कारण सद्वृत्त का पाठ हमारा कुछ बाकी था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो नए हमारे अभ्यासक थे इस कार्यक्रम में आज पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर के लिए ये विषय जो है, इस तरह के ये कोर्स आउटकम सभी कंप्लीट करता है। ये विषय सीखने के बाद विद्यार्थियों को ये सारी क्षमताएं वो प्राप्त कर सकते हैं कि आयुर्वेदीय ग्रंथों का अभ्यास करना, सूत्रों का वाचन करना, उनको समझना, अलग अलग तंत्र युक्ति के आधार पर विषयों को समझना, जो विषय सूत्रों में नहीं दिए हैं उनको भी वहां पर हिडन मीनिंग्स वगैरह जो होते हैं उनको भी वहां पर तंत्र युक्ति के आधार पर समझना, ये इस कोर्स आउटकम के अंडर आता है। ये विषय जो है दिनचर्या अध्याय, इसके लिए लेक्चर अवर्स दिए हैं टोटल 5 आवर्स, और नॉन लेक्चर अवर्स जो है 4 आवर्स है। तो डोमेन्स इसमें कॉग्निटिव डोमेन, कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन, एप्लीकेशन डोमेन, सभी डोमेन्स इसमें कवर होते हैं। और असेसमेंट के लिए भी एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम, वाइवा एग्जाम, दोनों के लिए भी ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यू सभी इस पर पूछे जाते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले, एग्जाम में पूछे जाने वाले अध्याय है। इसके टॉपिक्स अलग अलग पूछे जाते हैं या कई बार पूर्ण अध्याय ये पूछा जाता है, और उसका अभी के समय में
क्या महत्व है, ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये अध्याय है। दिनचर्या में जो विषय आते हैं वो हमने लास्ट टाइम ये यहाँ तक देखे थे, स्नान तक, प्रातः प्रबोधन से लेकर स्नान तक के विषय हमारे डिस्कस हो चुके थे। हम अभी डायरेक्टली सद्वृत्त पर शुरू करते हैं। सद्वृत्त व्याख्या इसकी ग्रंथों में की जाती है कि राइट और मोरली गुड बिहेवियर, एक्शंस और कंडक्ट, या जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं उनके अनुसार हमारा वर्तन करना, बिहेवियर करना। सतानाम वृत्तम सद्वृत्तम, सत व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का, या जो समाज के सत व्यक्ति होते हैं उनका जो वर्तन होता है उसको भी सद्वृत्त कहा जाए, इस तरह की व्याख्या हमें ग्रंथ में ये मिलती है। तो दिनचर्या का जो वर्णन आचार्यों ने किया है, दिनचर्या, ऋतुचर्या या अष्टांग हृदय के अध्याय 2 से लेकर 8 तक ये स्वस्थ वृत्त रक्षण के उपाय वहां पर दिए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण और भी है, इसलिए स्वास्थ्य रक्षण के उपाय उन्होंने पहले दिए हैं। उसमें भी अध्याय 2 से लेकर 4 तक विहार के बारे में बताया है और 5 से लेकर 8 तक के आहार के बारे में बताया है। तो दूसरा अध्याय अध्याय जो है दिनचर्या अध्याय, उसमें विहार के बारे में दिया है, वो भी बद्ध या सूत्रबद्ध ऐसा जो विहार होता है। अष्टांग हृदय के टीकाकार हेमाद्रि कहते हैं, उन्होंने विहार को 2 भाग में डिवाइड किया है, नियत विहार और अनियत विहार। तो सद्वृत्त और दिनचर्या ये दोनों भी नियत विहार में आते हैं, जिनको रेगुलरली डेली फॉलो करना कंपलसरी है, इस तरह के विहार है। तो व्याधि जिस तरह से हम जानते हैं कि 2 प्रकार के व्याधि होते हैं, शारीरिक रोग और मानस रोग। पहले अध्याय में उसके लिए शारीरिक दोष संग्रह और मानस दोष संग्रह, इनका वैषम्य कारणीभूत होता है, ऐसा चरक आचार्य सूत्रस्थान के पहले अध्याय में चरक संहिता में करते हैं। तो वात पित्त कफों के वैषम्य के कारण शारीरिक रोग होते हैं, और रज और तम ये जो मानस दोष है इनके वैषम्य के कारण मानस रोग होते हैं। तो दिनचर्या में जो विहार दिए हैं वो सिर्फ शारीरिक व्याधियों के ही प्रिवेंशन के लिए नहीं है, तो मानस विकारों के प्रिवेंशन के लिए भी वो सभी उपाय उन्होंने दिनचर्या में, इवन ऋतुचर्या में भी और सद्वृत्त में भी ये बताए हैं। तो शारीरिक रोगों के प्रिवेंशन के उपाय कौन से, तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, अधारणीय वेग इत्यादि है। वैसे ही मानस विकारों के लिए सद्वृत्त और धारणीय वेग वगैरह, इन सभी का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। सिर्फ शारीरिक व्याधियों का ही विचार करके चलेगा क्या? शारीरिक व्याधियों का विचार, शरीर को शरीर को स्वस्थ रखने से मन स्वस्थ रहेगा क्या, या सिर्फ मन स्वस्थ रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, दोनों के उपाय हमें वहां पर मिलते हैं। शारीर स्थान के 4थे अध्याय में चरकाचार्य कहते हैं कि शरीरम ही अपि सत्वम अनुविधीयते और सत्वम च शरीरम, मतलब दोनों का भी परिणाम, शारीरिक आरोग्य अगर बिगड़ता है तो उसका परिणाम मन पर होता है, मानसिक आरोग्य बिगड़ता है तो उसका परिणाम शरीर पर होता है, इसलिए दोनों का विचार करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मानसिक आरोग्य का रक्षण करने के लिए यहाँ पर सद्वृत्त जैसा ये विषय वर्णन किया है। एक शॉर्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आचार्य चरक ने क्या इंपॉर्टेंस दिया, वो है 2 मिनट में समझ लेते हैं और फिर विषय को शुरू करते हैं। जैसे कि व्याधियों के 3 हेतु दिए हैं, त्रिविध हेतु हम सभी जानते हैं, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योग मिथ्यान चाति च द्वयाश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। साथ में इंद्रियार्थ संयोग, काल परिणाम और प्रज्ञापराध, ये 3 हेतु दोनों प्रकार के व्याधियों के बताए जाते हैं। द्वयाश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु, दोनों प्रकार के जो व्याधि होते हैं, शारीर और मानस दोनों के ये हेतु है। सिर्फ शारीर ही नहीं, मानस व्याधियों में भी साथ में इंद्रियार्थ संयोग का परिणाम होता है और प्रज्ञापराग का भी परिणाम होता है, इवन काल परिणाम का भी परिणाम होता है। साथ में इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराग नहीं करना है, मतलब क्या करना है? साथ में इंद्रियार्थ सहयोग करना है, इसका अर्थ क्या है? बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हमारा विहार करना है, इसका अर्थ क्या है? तो ये सब बताने के लिए उन्होंने सद्वृत्त का वर्णन किया है। ऐसे चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 9 में चरकाचार्य कहते हैं। अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह उन्होंने बताया है कि मन अर्थ बुद्धि और आत्मा, इनको वो अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जब तक ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह प्राकृत है, सत्व गुण प्रधान है, तब तक वो शुभ कार्यों की प्रवृत्ति के लिए और अशुभ कार्यों की निवृत्ति का हेतु होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मानसिक और मन के अर्थ दोनों को भी प्राकृत रखना ये बहुत जरूरी है। अगर ये विकृत होते हैं
रज और तम के प्राधान्य से विकृत होते हैं, या इंद्रियों का या इंद्रियों के अर्थों का या मन के अर्थों का असम्यक योग होता है, वहां पर मानस विकार होते हैं, इंद्रिय विकार होते हैं। प्रज्ञापराध से और इंद्रियों के असम्यक योग से बुद्धि का उपघात होता है, ऐसा भी चरकाचार्य कहते हैं कि इंद्रियार्थ अतियोग अयोग मिथ्या योगात समनस्कम इंद्रियम विकृतिम आपद्यमानम यथास्वम बुद्धि उपघाताय संपद्यते। समनस्कम इंद्रियम, मन के साथ सभी इंद्रिय विकृतिम आपद्यमानम, अगर उनकी विकृति होती है तो यथास्वम उनके बुद्धि के इंद्रियों के अनुसार जो बुद्धियां होती है उनका भी उपघात होता है, और इसी बुद्धि उपघात के कारण व्यक्ति ध्यान ग्रहण प्राकृत नहीं कर पाता है, विषयों को समझ नहीं पाता है, और वो फिर प्रज्ञापराध करते रहता है, और वही प्रज्ञापराध आगे चलकर व्याधियों का कारण होता है। तो इस तरह से असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध दोनों भी मानस व्याधियों के कारण होते हैं, या उनके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। सद्वृत्त का अनुष्ठान किस लिए करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, उसके बारे में चरकाचार्य इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में कहते हैं, तत्र इंद्रियाणाम समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुपतापाय प्रकृति भावे प्रयतितव्यम एभिः हेतुभिः। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमारे लिए है कि इंद्रियाणाम समनस्कानाम, मन के साथ सभी इंद्रिय, मन और मन ये जो उभय इंद्रिय है और उसके साथ सभी पंच ज्ञानेन्द्रिय, अनुपतप्तानाम, अगर ये उपतप्त नहीं है, विकृत नहीं है, ऐसे इंद्रियों के और मन के अनुपतापाय, यानी उनमें कोई विकृति निर्माण ना हो, यानी वो प्राकृत रहे, उनका आरोग्य बना रहे, प्रकृति भावे प्रयतितव्यम, इसलिए उसके प्रकृति को स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। तो कौन से प्रयत्न करने हैं, किस तरह के प्रयत्न करने हैं, वो आगे कहते हैं कि ए भी ही हेतु भी ही प्रयतितव्यम, जो आगे दिए हैं उन हेतुओं से ये हमें प्रयत्न करने चाहिए। कौन कौन से हेतु है मन को और इंद्रियों को प्राकृत रखने के? तो 3 उदाहरण उन्होंने वहां पर दिए हैं कि सात्मे इंद्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या सम्यक अवेक्ष्य कर्मणाम सम्यक प्रतिपादनेन देश काल आत्मगुण विपरीत उपासनेन चैति। सात्मे इंद्रियार्थ संयोग यानी क्या? बुद्धि का उपयोग, सम्यक उपयोग करते हुए सम्यक कार्य करना, शरीर से, मन से, वाचा से सम्यक कर्म करना। कैसे कैसे करना है, वो क्या, उसमें क्या क्या करना है, उसके उदाहरण भी वो सद्वृत्त में देते हैं। देश काल और आत्मगुण, यहाँ आत्म यानी आत्मा नहीं, तो आत्मा यानी स्वयं, शरीर, मन, इन सभी के गुण और उनके विपरीत, देश के विपरीत, काल के विपरीत, हमारी दोष प्रकृति, शरीर प्रकृति, उन सभी के विपरीत उपासना करनी है। आहार विहार ये उन उपासना करते हुए इनको प्राकृत रखने का प्रयत्न करना है। तस्मात् आत्महितम चिकीर्षता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिम आस्थायम सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। तो इस तरह से आत्महितम चिकीर्षता, जो व्यक्ति अपने हित की चिंता करता है, उसने अपने आरोग्य का रक्षण करने के लिए सर्वम सर्वदा स्मृतिम आस्थाय, हमेशा स्मृति में रखते हुए सद्वृत्त का अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये सद्वृत्त का उद्देश्य चरकाचार्य ने वहां पर दिया है कि सद्वृत्त का पालन किस लिए करना चाहिए। सद्वृत्त सिर्फ एग्जाम में ही आता है ऐसा विषय नहीं है, वो डेली लाइफ में हमारे काम आता है, क्लिनिक में भी काम आता है, डेली पेशेंट में काउंसलिंग के लिए या पेशेंट के हेतुओं को ढूंढने के लिए भी हमें वो काम आता है। इवन चिकित्सा बताते समय पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आहार के बारे में भी, विहार के बारे में भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रत्यय अपत्य बताते समय में सद्वृत्त का उपयोग होता है। सद्वृत्त की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ रेफरेंसेस आगे मिलते हैं संहिताओं में कि त्याग प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशम स्मृति देश काल आत्मविज्ञानम सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम आगंतुनाम अनुत्पत्तौ एषो मार्ग निदर्शितः। ये एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कि आगंतु व्याधि जो बताए गए हैं, आगंतुनाम अनुत्पत्तौ, आगंतु व्याधि उत्पत्ति ना हो, उनके लिए कौन से मार्ग बताए हैं, तो उसमें सद्वृत्त भी आता है। तो सद्वृत्त ये सिर्फ मानस व्याधियों के निराकरण के लिए ही है ऐसा ही नहीं है। तो अन्य जो आगंतु व्याधि होते हैं, मेनली उसमें असात्म इंद्रियार्थ संयोग और प्रज्ञापराध, ये दोनों भी कारणीभूत होते हैं। उन वजह से होने वाले मानस व्याधि भी और आगंतु व्याधि भी, दोनों के निराकरण के लिए सद्वृत्त का उपयोग होता है। वैसे ही एक और रेफरेंस मिलता है, आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शांते। तो जो विकार उत्पन्न हुए हैं उनके शांति के लिए भी, और जो विकार उत्पन्न नहीं हुए वो ना हो, यानी प्रिवेंशन के लिए भी, दोनों के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण बताते हुए भी वो कहते हैं कि जो सद्वृत्त कुशल होता है,
वो एक प्राणाभिसर वैद्य होता है, यानी सदवृत्त के बारे में जो सब कुछ जानता है, स्वयं उसका आचरण करता है और सभी नियम वगैरह सभी पालन करता है और उनका अभ्यास रखता है, वो एक वैद्य प्राणाभिसर वैद्य हो सकता है। प्रज्ञापराध के कारणों में प्रज्ञापराध के उन्होंने हेतु दिए शारीर स्थान में, वहां पर भी वो कहते हैं कि इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्जनम। इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में सूत्र स्थान के जो सद्वृत्त बताया है उसका अगर कोई पालन नहीं करता है तो वो प्रज्ञापराध का हेतु होता है, कारण होता है, और यही प्रज्ञापराध भी आगे चलकर अनेक व्याधियों का कारण होता है। तो इस तरह से इंद्रियों की विकृतियां मानस इंद्रियों की विकृतियों से मानस विकृतियां होती है और फिर उसके कारण बुद्धि विकृतियां होती है, और प्रज्ञापराध के कारण अलग अलग विकृत कर्म कोई व्यक्ति करते रहता है और उसके कारण उसको शारीरिक, मानस और आगंतु, इस तरह निज और आगंतु ऐसे सभी प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते रहते हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस है कि ये भूत विष वायु अग्नि रोग अग्नि संप्रहार आदि संभव नुराम आगंतो रोग। आगंतु रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये रेफरेंस हमें चरक में मिलता है कि भूत विष विषयुक्त वायु अग्नि इत्यादि के संपर्क से होने वाले आगंतु रोग, उनके कारणों में प्रज्ञापराध ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। वैसे ही मनोविकार जो होते हैं कि ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये मनोविकारा ते अपि उक्ताः सर्वे प्रज्ञापराधजा। मनोविकार भी प्रज्ञापराध से ही होते हैं। तो इन सभी विकारों को रोकने का उपाय क्या है, तो मन के अर्थ और बुद्धि ये प्राकृत होने चाहिए, तब वो शुभ प्रवृत्ति के लिए कारणीभूत होंगे और अशुभ की निवृत्ति के लिए कारणीभूत होंगे। इनको प्राकृत रखने के उपाय क्या है, तो ये तीन उपाय वहां पर दिए हैं कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग नहीं करना है, सात्म इंद्रियार्थ संयोग का ही पालन हमेशा करना है। जो जिसकी बुद्धि विकृत हुई है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हुई है, और ऐसा होने के कारण जो व्यक्ति कोई भी गलत कर्म करता है, शारीरिक कर्म मानसिक कर्म वाचिक कर्म करता है, वो अनेक व्याधियों का कारण होता है। तो वो ना हो, ऐसे कर्मों का सम्यक योग कैसे करना है, काल का सम्यक योग कैसे होना चाहिए, काल पर तो हमारा नियंत्रण नहीं होता है, परंतु फिर भी उस काल का सम्यक योग कैसे करना है, उन सभी के उपाय उन्होंने कहाँ पर दिए हैं, तो तस्मात् आत्महितम चिकित्सता स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, ये सभी करना है। तो इन सभी के उदाहरण या उसके एग्जाम्पल्स उन्होंने सद्वृत्त में यहाँ पर दिए हैं। तो मूल विषय हमारा जो है सद्वृत्त का, वो शुरू करते हैं। तो ये उद्देश्य है सिर्फ मानसिक व्याधि ही नहीं, शारीरिक व्याधि भी, अगंतु व्याधि भी और निज व्याधि भी, सभी प्रकार के व्याधियों के निराकरण के लिए सद्वृत्त ये इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे टाइप्स हमें मिलते हैं कि सामाजिक सद्वृत्त है, वैयक्तिक सद्वृत्त है, वैयक्तिक स्वच्छता के लिए बताए गए कुछ नियम है, आहार से संबंधित कुछ नियम है, विहार से संबंधित बताए हुए कुछ नियम है, सामाजिक कुछ नियम है, कुछ मतलब करणीय है और कुछ अकरणीय है, यानी कुछ नियम ऐसे कि जिनको फॉलो करना है, कुछ चीजें ऐसी बताई कि जिनको अवॉइड करना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सद्वृत्त हमें यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं। टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं हमारे, उनमें उसका रेडीमेड ट्रांसलेशन या रेडीमेड क्लासिफिकेशन हमें ये मिल जाता है। आज के इस व्याख्यान का अधिकरण हमारा अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय था, इसलिए ऐसा क्लासिफाई न करते हुए श्लोक बाय श्लोक ये हम सद्वृत्त यहाँ पर देखेंगे। तो श्लोक नंबर 20 से अष्टांग हृदय में सद्वृत्त शुरू होता है। सुखार्ताः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मा तस्मात् धर्म परो भवेत्। सद्वृत्त की शुरुआत ही उन्होंने इस श्लोक से की है कि सभी प्राणी मात्र इंक्लूडिंग मनुष्य सभी सुख के लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं, उनकी सभी प्रवृत्तियां सुख के लिए ही होती है। तो सद्वृत्त के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने सभी सद्वृत्त के जो नियम होते हैं उनका पालन करना है। यहाँ पर यह सामान्य नियम उन्होंने दिया है कि सुखार्थाः सर्वभूतानां प्रवृत्तयः मताः, सभी प्राणियों की प्रवृत्तियां जो होती है वो सुख प्राप्ति के लिए होती है। लेकिन सुख कैसे मिलता है, तो सुखम च न विना धर्मात्, बिना धर्म प्राप्ति से, बिना धर्म आचरण से सुख नहीं मिलता है। इसलिए धर्म परो भवेत्, तस्मात् धर्म परो भवेत्, हमेशा धर्माचरण करना है। तो धर्माचरण क्या होता है, तो अलग अलग नियम जो होते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन या जो कायदे कानून वगैरह होते हैं उनके अनुसार की, या अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, या रिलीजियस और मोरल्स वैल्यूज होते हैं, अलग अलग ड्यूटीज होती है, या देशों के अनुसार समाज के अनुसार प्रिस्क्राइब्ड और अनप्रिस्क्राइब्ड जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उन सभी को धर्म कहते हैं। उन नियमों के अनुसार पालन करना, हमारा आचरण करना, इसको धर्माचरण कहते हैं। और ऐसे धर्माचरण से ही सुख प्राप्त होता है, अधर्म आचरण से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा आचार्य यहाँ पर कहते हैं।
कुछ रेफरेंसेस हमें धर्म के बारे में अन्य ग्रंथों में मिलते हैं कि धारणात् धर्मः धर्मो धारयति प्रजा सुखस्य मूलम धर्म कौटिल्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को और पीजी के विद्यार्थी होंगे तो उनको मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि हमें मूल ग्रंथ पढ़ते समय टीकाकारों ने क्या दिया है वो भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ ट्रांसलेशन ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए, मूल श्लोक जो होते हैं उनको भी प्रत्येक शब्द को एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ना है और फिर उस वाक्य को समझना है और उस वाक्यों के अर्थ या शब्दों के अर्थ जो टीकाकारों ने दिए रहते हैं उनको भी हमें समझना है, तो हमें ये ग्रंथ ठीक तरह से समझ में आते हैं। ट्रांसलेशन पर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ टीकाकारों के जो अष्टांगोदय के दोनों के टीकाकार है अरुण दत्त और हेमाद्री, इनके जो मत है जो इम्पोर्टेंट मत है वो यहाँ पर स्लाइड में दिए हुए हैं। अगला सूत्र आता है भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवेत इतर दूरगः। कल्याण मित्राणि सेवेत, जो मित्र होते हैं वो कल्याण मित्र होने चाहिए, ऐसे ही मित्रों की सेवा करनी चाहिए। या सेवा का अर्थ सेवा करना ऐसा नहीं है, तो उनका सहवास होना चाहिए, ऐसे मित्रों के ही संगत में रहना है, इस तरह का वो अर्थ है। भक्ति पूर्वक वो सेवा करनी है ऐसा वो कहते हैं। भक्ति का अर्थ अरुंधत्य देखी अदम्भम मति ही, अदम्भ यानी किसी तरह का दंभ मन में न रखते हुए, अहंकार आदि मन में न रखते हुए अपने जो कल्याण मित्र होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ सहवास होना चाहिए। जो अपना हित सोचते हैं उन्हीं को कल्याण मित्र कहा जाता है, और जो अपने हित के बारे में नहीं सोचते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना उचित है। इस तरह का आदेश ये हमें मिलता है। इस अध्याय में या शत्रुत्व में दिए हुए सभी जो उपदेश है वो आदेशात्मक है, आज्ञार्थक है, इस तरह के क्रियापद हमें यहाँ पर मिलेंगे। उपदेश उन्होंने दिए हैं, पहले अध्याय में कहते कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, तो यही सारे वो उपदेश यहाँ पर दिए हैं जिनका हमें परम आदर धारण करना है, जिनको दैनंदिन जीवन में फॉलो करना है। फिर बाद में ये पाप कर्म दिए हैं, दशविध पाप कर्म, हिंसा अस्तेय अन्यथा कामम वैशून्यम परुषान्नुते संभिन्न आलापम व्यापदम अविद्याम दुर्विपर्ययम पाप कर्म इति दशधा कायवाग मनसे त्यजेत। दशधा पाप कर्म इति, ये जो दश पाप कर्म है, काय वाक मनसई ही त्यजेत, तीनों से इसका त्याग करना है। तो इतने ही पाप कर्म है क्या? तो नहीं, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ पर ये दिए होंगे, इनके अलावा अन्य जो कोई भी पाप कर्म होते हैं उनका भी हमें त्याग करना चाहिए, ऐसा हमें त्रिदेश तंत्र युक्ति से समझ में आता है। ग्रंथों का अभ्यास करते समय हमें तंत्र युक्तियों का भी उपयोग करना होता है। तंत्र युक्ति से जो सूत्रों में या श्लोक में विषय नहीं दिया होता है वो भी हमें समझना होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे जैसे आएंगे वैसे हम तंत्र युक्ति की वहां पर देखेंगे। तो उसके अर्थ, इन शब्दों के अर्थ ग्रंथकारों ने दिए हैं, सॉरी टीकाकारों ने दिए हैं। हिंसा, प्राणी उपघातः या प्राणी वध, ऐसे टीकाकार कहते हैं। जो ब्लैक कलर में दिया है वो अरुण दत्त का मत है, और जो रेड कलर में दिया है वो हेमाद्री का मत है। तो किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को कायिक वाचिक या मानसिक दुख ना हो, इस तरह का प्रयत्न हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अगर वो दुख देता है तो वो हिंसा है। स्तेय यानी चोरी नहीं करनी है। अन्यथा काम यानी मैथुन कर्म, जो आयुर्वेद शास्त्र में मैथुन संबंधित कुछ नियम दिए हैं अब्रह्मचर्य में या ब्रह्मचर्य पालन में, उन नियमों का पालन न करते हुए अगर कोई मैथुन कर्म करता है तो उसको अन्यथा काम कहा जाता है। जिन पद्धतियों को निषिद्ध माना जाता है, जिन व्यक्तियों को, जिन स्थानों को, जिन काल पर निषिद्ध माना जाता है मैथुन कर्म, ऐसे समय में करना उसको अन्यथा काम कहते हैं और उसको हमेशा टालना चाहिए। वाचे पाक कर्म दिए है वैशून्य परुषम अनृतम संभिन्न आलापः, तो इस तरह से कभी भी नहीं बोलना है। वैशून्य, जैसे उसकी व्याख्या हेमाद्री बहुत अच्छी तरह से देते हैं कि परस्य अप्रत्यक्षम तद दोष कीर्तनम, किसी के सेंस में अप्रत्यक्ष अवस्था में उसके दोष का कीर्तन करना, यानी उसके दोष किसी और को बताना। तो इस तरह का हमारा बिहेवियर या इस तरह की वाचा हमारी नहीं होनी चाहिए। अरुण दत्त कहते कि परेशान भेदकृत वचनम, दूसरों के भेद बताने वाली ऐसे वाक्य बोलना, वो भी तीसरे व्यक्ति को बताना, इसको पहले कहा जाता है परुष। परुष वचन यानी क्या? तो परस्य प्रत्यक्षम दोष कीर्तनम, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष उसके दोष को बताना, वो भी कठोर वचन, कठोर शब्द के साथ उनको बचाना। अमृदु वचन वो कहते हैं, तो इस तरह से बोलना उसको परुष वचन कहते हैं। अनृत असत्य वचन, झूठ बोलना। संभिन्न आलाप असंबद्ध प्रलपनम या असत प्रलाप, जो सत्य नहीं है ऐसे बोलते रहना, कंटिन्यूअसली बोलते रहना। या असंबद्ध, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई
लॉजिक नहीं है, ऐसे कुछ तो भी बोलते रहना कंटिन्यूअसली, उसको संभिन्न आलाप कहते हैं। तो ये सारे डालने हैं, अवॉइड करने हैं। डाल दो ना डिस्ट्रिक्ट। मान, हाँ मानस पाप कर्म दिए खुद है में आगे, डाला। कि मन के द्वारा जो पाप कर्म किए सारा जाते हैं। अभी मन के द्वारा कैसे पाप कर्म किए जाते हैं, तो एक्चुअली ये विचार भी हमारे मन में नहीं आने चाहिए। अगर वो विचार भी मन में आते हैं इस तरह का बिहेवियर करने के, इस तरह का वर्तन करने के, तो उसको भी पाप कर्म कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। व्यापाद, अविद्या और ध्रुव विपर्यय। दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना, दूसरे का नुकसान हो, किसी तरह से उसको दुख मिले या उसका कोई तो भी आ, किसी तरह से नुकसान हो, इसको व्यापाद कहा जाता है। तो इस तरह का विचार भी हमें नहीं करना है। विद्या, पर गुणादेह असहिष्णुता या ईर्ष्या, हम ना कि दूसरे के कुछ गुण होते हैं, उसमें कुछ क्वालिटीज होते हैं उनके प्रति, या उनको कुछ मिलता है तो उसके प्रति ईर्ष्या रखना, उसको अविद्या कहते हैं। या यहाँ पे क्या है, तुम इसमें नहीं है, इसमें क्या है क्या? हेमाद्रि उसका अर्थ देते हैं कि परसु अपहरण इच्छा, दूसरे के वस्तुओं का अपहरण करने की जो इच्छा है उसको भी वो अविद्या कहते हैं। ध्रुव विपर्ययम, नास्तिकत्वादि शास्त्र दृष्टि वैपरीत्यम। दो अलग अलग अर्थ अरुण दत्त ने ही यहाँ पर दिए है कि नास्तिकत्व, उसको ध्रुव विपर्य कहते हैं, और शास्त्र दृष्टि वैपरीत्य। शास्त्र दृष्टि यानी क्या, तो शास्त्र में जो उपदेश दिए रहते हैं, शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, उनके विपरीत विचार करना, विपरीत व्यवहार करना या उन पर आस्था न रखना, हम फर्स्ट है चाहिए उसमें डॉट डॉट डाल दे बस। Excuse me, उसको sir. ध्रुव Excuse me. विपर्य कहते हैं। Excuse me, sir. Excuse me, sir. I request all the participants please keep themselves on mute mode. सभी से विनंती है कि अपने आप को म्यूट करके रखिए, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है और सर के लेक्चर में डिफरन्स हो रहा है. सॉरी सर फॉर द इंटरप्शन. प्लीज कंटिन्यू. इट्स ओके सर, मला वाटलं अधिक मला काहीतरी सूचना देत आहेत म्हणून मी थांबलो. ओके, कंटिन्यू करते हैं. ध्रुव विपर्य यानी दृष्टि, यानी शास्त्र के जो उपदेश होते हैं उनके प्रति विपरीत आचरण रखना या उन पर विश्वास न रखना, उनमें आस्था न रखता, उसको ध्रुव विपर्य वो कहते हैं. आप्त वाक्येषु अप्रमाण बुद्धि ही, इस तरह की व्याख्या हेमाद्रि उसकी करते हैं कि आप्त वाक्य, ग्रंथों में जो वाक्य दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, वो आप्त वाक्य है और उनके प्रति अप्रमाण बुद्धि यानी उन पर विश्वास न रखना, इसको ध्रुव विपर्य कहते हैं. ये एक मानसिक कर्म है, इस तरह के विचार भी हमें नहीं करने चाहिए, अदरवाइज वो पाप कर्म में आते हैं. तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पाप कर्म दिए हैं. अन्य और कोई भी होंगे या होते हैं तो उनको भी हमें टालना है. सिर्फ यही नहीं, इतने ही नहीं, अन्य कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्म है, सभी हमें टालने हैं. अगला श्लोक. अवृत्ति व्याधि शोकार्थान अनुवर्तेत शक्तितः. अवृत्ति, व्याधि और शोक आर्तान. वृत्ति का अर्थ वो देते हैं कि जीवन के उपाय, यानी जीवन जीने के साधन जिनके पास नहीं है उसको अवृत्ति कहते हैं. यानी व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, पैसा वगैरह नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं. व्याधिग्रस्त है, व्याधि से आर्त है और शोक से आर्त है. आर्तान, ये दोनों को लगाना है, व्याधि आर्तान और शोक आर्तान. ऐसे व्यक्तियों को अनुवर्तित शक्तितः, अनुवर्तित यानी उनकी मदद करने की कोशिश करनी है, उनको सहाय करना है. शक्तितः, शक्तिता यानी जितना हमारा सामर्थ्य होगा, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, अलग अलग प्रकार का जो सामर्थ्य होगा उसके अनुसार ही हमें उनकी मदद करनी है. आत्मवत सततम पश्येदपि कीटपिपीलिकम. जीवों के प्रति जो दया भावना है उसके बारे में बता रहे कि आत्मवत सततम पश्य, हमारी तरह, अपने स्वयं की तरह है, कीट पिपीलिका आदि जो सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी हमारी तरह ही देखना है. मतलब कितने भी क्षुद्र जीव क्यों ना हो, उनके प्रति भी एक आत्म भावना होनी चाहिए, एक स्नेह भावना होनी चाहिए. तो क्षुद्र जीवों के प्रति है तो सामान्य जो मनुष्य होते हैं या अन्य कोई प्राणी होते हैं उनके प्रति तो होनी ही चाहिए. इस तरह का इसका अर्थ है. सभी के प्रति हमें एक एकत्व बुद्धि या एक बुद्धि ये हमें रखनी चाहिए और सबके प्रति एक अच्छा वर्तन हमारा होना चाहिए, दया भावना हमारे मन में उनके प्रति होनी चाहिए. अर्चेत देव गो विप्र वृद्ध नृप अतिथि. इन सभी की अर्चना करनी है, पूजा करनी है या उनका सम्मान करना है, आदर करना है. देव है, गो है, विप्र है, वृद्ध है, वैद्य, नृप, अतिथि एक्सेट्रा, ऐसे जो मान्यवर या सद जिनको माना जाता है, अच्छा जिनको माना जाता है, उनके प्रति इस तरह का हमारा बिहेवियर होना चाहिए. वृद्धा की व्याख्या उन्होंने यहाँ पर की है कि वृद्ध इति ज्ञान वृद्धा शील तपो वृद्धाश्च. वृद्ध सिर्फ वय से वृद्ध व्यक्ति को ही वय से बड़े व्यक्ति को ही वृद्ध कहते, ऐसा नहीं है.
तो जो ज्ञान से वृद्ध है वैसे हमसे कम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान हमसे ज्यादा है, तो उनको भी वृद्ध कहना चाहिए या कहते हैं, या वृद्ध शब्द उनके लिए भी ग्रंथों में यूज किया जाता है। शील वृद्ध और तपोवृद्ध, आचरण से, स्वभाव से, अपनी तपश्चर्या से, यानी जो कष्ट वगैरह उन्होंने किए होते हैं कुछ चीज को पाने के लिए, उनका भी अनुभव अगर उनके पास है तो उनको भी वृद्ध कहना चाहिए, ऐसा वो अरुण यहाँ पर कहते हैं। श्रुत आदि भी आत्मनो अधिकः, श्रुत आदि, श्रुत यानी श्रवण जिसका किया हुआ है, तो जनरली श्रुत ये शब्द ये शास्त्र श्रवण के लिए करते हैं। ग्रंथों में कई जगह पर ये श्रुत शब्द जो होता है वो शास्त्र का ज्ञान जिसने किया हुआ है उसको श्रुत कहते हैं, यानी जिसके पास शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, अच्छे ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें एक आदर रखना है, उसको वो वृद्ध कहते हैं। नृप, राजा वगैरह, अतिथि वगैरह, उनका तो आदर करना ही है। अतिथि की व्याख्या दी है कि असमान ग्रामी वैश्व देवांते समुपस्थित। नेक्स्ट, विमुखान न अर्थिनः कुर्यात् न अवमन्येत न अक्षिपेत। अर्थिनः, अर्थिनः शब्द यानी जो हमारे पास किसी तरह की मदद मांगने के लिए कोई व्यक्ति आता है उसको अर्थिनः कहा जाता है। व्याख्या दी है अरुण दत्त ने, अर्थिनः इति याचकान, याचक बनकर किसी तरह की सहायता के लिए अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको विमुख नहीं करना है। प्रत्याख्यानेन विमुखान न कुर्यात्, उसको जितना हो सकता है उतनी मदद करनी है। अगर हम मदद नहीं कर सकते हैं तो न अवमन्येत, उनका अवमान तो भी नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, पोलाइटली उसको मना कर सकते हैं। उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, उनका अपमान अनादर वहां पर नहीं करना है। न च पुरुष वचन आदि ना आक्षेपेत, परुष वचन आदि कहते हुए, भला बुरा कहते हुए उनको आक्षेप नहीं लेना है। मतलब कोई भी अगर मदद के लिए आता है, सहायता के लिए आता है, तो जितना हो सकता है उनकी सहायता करनी है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनका अपमान तो भी नहीं करना है, और उनको कुछ उल्टा सीधा बोल के उनको दुख हो इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। उपकार प्रधान स्यात् उपकार परे अपि अपरौ, जो हम पर अपकार करने वाले भी हमारे, जो अरौ शब्द है, अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु, जो शत्रु हम पर हमेशा अपकार करते हैं उनके प्रति भी हमारा वर्तन ये उपकार कारक ही होना चाहिए। इस तरह इस श्लोक का यह अर्थ है कि उपकार प्रधान स्यात् उपकार परे अपि अपरौ अरौ। संपत विपत्सु एकमना हेतु ईर्षेत फले नतु, दो विषय इस एक सूत्र में दिए हैं। संपत्सु विपत्सु एकमनाः स्यात्, यहाँ पर क्रियापद नहीं है वो हमें लगाना है। अष्टांगोदय के कई श्लोक ऐसे होते हैं कि जिनमें क्रियापद नहीं होता है, कहीं पर कर्ता नहीं होता है, कहीं पर कर्म नहीं होता है, कहीं पर क्रियापद नहीं होता है, तो वहां वाक्य शेष तंत्र युक्ति का उपयोग करते हुए हमें उस वाक्य को पूर्ण करना होता है और समझना होता है। तो संपत्सु विपत्सु एकमनः स्यात्, संपत्त का अर्थ होता है कि सुख की अवस्था, यानी जब सब कुछ हमारे जो चाहिए होता है वो हमारे पास होता है उसको संपत्त कहते हैं। और विपत्ति यानी विपत्ति, कोई आपत्ति, कोई संकट है या दुख है, तो ऐसे दोनों भी अवस्थाओं में अपने मन को एक रखना है, एक जैसा रखना है, ऐसा इसका अर्थ है। टीकाकारों ने उनकी व्याख्या की है कि संपत्ति इति सुख या हर्ष, अत्यंत हर्षित होना, सुख की अवस्था में हर्षित नहीं होना है, अत्यंत उत्साहित नहीं होना है, बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, और विपत्ति की अवस्था में यानी संकट की अवस्था में भी विषाद इस अवस्था में नहीं जाना है, यानी डिप्रेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। एक मनाह समचित्तः निर्विकारः चित्तः, अपने मन को हमेशा निर्विकार रखना है, ना तो बहुत ज्यादा खुश होना है ना ही बहुत ज्यादा दुखी होना है, बहुत ज्यादा निराश होना है। अपने मन को, अपने चित्त को हमेशा हर्ष और विषाद रहित रखना है। हेतु ईर्षेत फले नतु, हेतु की ईर्षा रखनी है, फल की नहीं रखनी है। वैसे कहा जाए तो, वैसे देखा जाए तो धारणीय वेग में ईर्षा, ये एक उन्होंने धारणीय वेग बताया कि ईर्षा नहीं करनी है, लेकिन एक सात्विक ईर्षा हम किसी व्यक्ति के प्रति या किसी कार्य के प्रति रख सकते हैं। सात्विक ईर्षा अगर होती है तो हमें काम करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कारण के प्रति ईर्षा रखनी है, फल के प्रति नहीं रखनी है। तो जो फल प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति ने जो मेहनत की होती है, कष्ट किए होते हैं, जो कारणों का उपयोग जिस तरह से किया होता है, उनके प्रति ईर्षा रखते हुए हमें उतनी ही मेहनत करनी है, कष्ट लेने हैं, तब जाकर हमें भी वैसा ही फल मिलेगा। ना कि सिर्फ फल के बारे में चिंता करते बैठना है, उसके बारे में ईर्षा नहीं करनी है। ऐसा इस वाक्य का अर्थ हो सकता है। ईर्षा की व्याख्या वहां पर हेमाद्री ने दी है कि पर उत्कर्षा सहनम, दूसरे का उत्कर्ष असहन होना, यानी सहन न होना,
दूसरे किसी भी व्यक्ति का उत्कर्ष यानी उसकी जो प्रगति होती है, उन्नति होती है, वो सहन न होना, इसको वो ईर्ष्या कहते हैं। तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनका अर्थ हमें पता होना जरूरी है। कहीं पर ग्रंथों में दिया होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ग्रंथ में नहीं है तो टीकाकार वो देते हैं। अगर टीकाकारों ने भी नहीं दिया है तो हमें डिक्शनरीज में से पढ़कर उन अर्थों को समझना है और वाक्य का अर्थ लगाना है। अपने मन से कोई भी अर्थ वहां पर नहीं लगाना है। नेक्स्ट, काले हितम मितम ब्रूयात अविसंवादी पेशलम, बोलने संबंधी ये उपदेश यहाँ पर दिए हैं। ब्रूयात ये क्रियापद है, वो सभी को लगाना है। काले ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, अविसंवादी ब्रूयात और पेशलम ब्रूयात, इस तरह से बोलना है। तो बोलना एक कम्युनिकेशन का साधन है। आज के जमाने में प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हो, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके ये जो नियम उन्होंने बताए हैं वो उस समय के हैं, लेकिन आज भी जैसे के वैसे लागू पड़ते हैं। काले ब्रूयात, काले यानी योग्य अवस्था में, योग्य समय में जितना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए। उस समय के लिए जो उचित है उतना ही बोलना है, वैसा ही बोलना है। हितम ब्रूयात, हित का अर्थ है जो हितकर है, जो आवश्यक है, जो पथ्य है, जो फायदेमंद है, उतना ही बोलना है। जो अहितकर होगा वो नहीं बोलना है। उन शब्दों को, इन वाक्यों को टालना है। मितम ब्रूयात, मित का अर्थ अल्प ऐसा नहीं है। तो मित का अर्थ है कि जो अनावश्यक बड़बड़ वहां पर नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जितना अपेक्षित अर्थ होता है उतना प्रकाशित हो इतना ही बोलना है, ना कम ना ज्यादा। अविसंवादी ब्रूयात, अविसंवादी यानी किसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन वो विसंवाद निर्माण करने वाला न हो सके तो सुसंवाद ही उसमें हो। हमारे बोलने से उसमें विसंवाद या वाद या कोई झगड़ा वगैरह निर्माण ना हो, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है। पेशलम ब्रूयात, मनोज्ञम, दूसरे व्यक्ति को, अपने भी और दूसरे के भी और सुनने वालों सभी के भी मन को जो प्रसन्न करे, अच्छा लगे, इस तरह से ही मधुर भाषण उसमें करना है। इस तरह से बोलने संबंधी ये नियम उन्होंने बताए हैं। और भी दिया है आगे कि पूर्वाभिभाषी स्यात्, हमेशा पूर्व अभिभाषण करना है। इसका अर्थ टीकाकार देते कि पूर्व आलापी, पहले बोलना चाहिए। यदृच्छया, हेमाद्री बहुत अच्छा इसका एक अर्थ देते हैं कि यदृच्छया संगते सुहृदि तद वचनात् पूर्वम कुशल प्रश्नाधिकारी स्यात्। यदृच्छा से अगर हम किसी हमारे सहृद को मिलते हैं, कोई प्लान्ड मीटिंग है, तो उसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन शुरू करेगा, ये तो हमारा पहले से डिसाइडेड रहता है। लेकिन अचानक से यदृच्छा से अगर कोई मिलता है, कोई सुहृद है, जान पहचान का व्यक्ति है, उसको मिलने के बाद पहले बोलने के लिए शुरुआत हमने करनी चाहिए, ऐसा वो अर्थ है। तद वचनात् पूर्वम, उनके बोलने से पहले हमें बोलना है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना स्टार्ट करें, तो उसके बारे में भी वो कहते हैं कि कुशल आदि प्रश्नाधिकारी स्यात्, कुशल मंगल पूछना है, काम के बारे में पूछना है, प्रकृति के बारे में पूछना है, वो व्यक्ति कैसे है, परिवार वाले कैसे, इस तरह से बोलते हुए कन्वर्सेशन की शुरुआत वहां पर हमने खुद होके शुरू करनी है। सुमुख सुशील करुणा मृदु स्यात्, बोलते समय या कभी भी हमारा मुख हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। सुमुख, प्रसन्न होना चाहिए। दूसरों को देखकर भी हमें हमें देखकर भी दूसरों को प्रसन्न लगना चाहिए, इस तरह से वो हमारा चेहरा हमेशा होना चाहिए। सुशील, शोभन स्वभाव या शिष्ट अनुमत व्यवहार, तो जो कुछ नियम होते हैं व्यवहार के, उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। वर्तन या आचरण हमारा ठीक तरह से होना चाहिए। करुणा मृदु स्यात्, अरुण तो उसकी व्याख्या करते हैं कि मृदु आर्द्र संतान मातेव पुत्रे, माता इव पुत्रे, माता अपने पुत्र के साथ जिस तरह से करुणा युक्त या स्नेह युक्त वर्तन करती है, ऐसा ही मृदु वर्तन हमारा भी होना चाहिए। इसके बारे में हेमाद्री कुछ अलग कहते हैं कि सत्य अपि सामर्थ्य कृपालुत्वात् पर अपकार सहिष्णु, सती अपि सामर्थ्य यानी सामर्थ्य यानी पावर हमारे पास होते हुए भी, कृपालुत्वात् स्वयं हम कृपालु होने के कारण, पर अपकार सहिष्णु, दूसरे के अपकार को भी सहन करने की या सहन करने की क्षमता हमें होनी चाहिए या वो रखनी चाहिए। किसी ने अगर अपकार किया है, हमारा अपमान किया है, तो उसको सहन कर लेना चाहिए। इस तरह का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, या सामर्थ्य होते हुए भी उसको सहन करना है, ना कि एक हमारा एरोगेंस वहां पर दिखाना है। नेक्स्ट, न एक सुखी ही न सर्वत्र विश्रब्ध हो न च शंकितः,
हमेशा अकेले सुखी नहीं रहना है, सुख को सबके साथ शेयर करना है। न सर्वत्र विश्रब्धः न च शंकितः, सभी पर एकदम से विश्वास भी नहीं रखना है और सभी पर एकदम से शंका यानी अविश्वास भी नहीं रखना है। इसके बारे में हमारी तम कहते हैं कि सर्वत्र अविश्वसनीयेषु विश्वासम, जो सभी व्यक्ति अविश्वसनीय होते हैं उन पर सर्वत्र विश्वास नहीं रखना है। और वैसे ही जो अशंकनीय होते हैं यानी जिन पर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी लोगों पर शंका लेनी नहीं चाहिए। यानी हमारे परिचित होते हैं, कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, तो उन पर शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अशंकनीय है उन पर अगर हम शंका लेते तो हमारे रिलेशन उसमें और खराब हो सकते हैं। ठीक है। न कदाचित आत्मनः शत्रुं न आत्मानं कस्यचित् रिपुं प्रकाशयेत् न अपमानम न च निस्नेहताम प्रभोः। तो यहाँ पूरे एक वाक्य में प्रकाशयेत् ये क्रियापद यहाँ पर दिया है, ये हर जगह पर लगाना है। न कश्चित आत्मनः शत्रुं प्रकाशयेत्, न आत्मानं कस्यचित् रिपुं प्रकाशयेत्, न अपमानम प्रकाशयेत्, न च निस्नेहताम प्रभोः प्रकाशयेत्। प्रकाशित करना यानी सबको बताना, सबको इन्फॉर्म हो, सबको खबर हो, इस तरह का हमारा बिहेवियर उसमें नहीं होना चाहिए। सभी को बताते नहीं फिरना चाहिए, इस तरह का वो अर्थ है कि हमारा किसी का शत्रुत्व है या हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं या कोई हमें अपना शत्रु मानता है, ये सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सीक्रेट्स होते हैं कि जो अपने पास ही रखने चाहिए। न अपमानम प्रकाशित, अगर हमारा किसी ने अपमान किया है तो उसको भी प्रकाशित नहीं करना है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि हमने अगर कभी किसी का अपमान किया तो वो भी दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। न च निस्नेहताम प्रभु हो, प्रभु यानी कोई भी स्वामी है, एम्प्लॉयर वगैरह है या अन्य कोई भी व्यक्ति होते हैं कि जिनके अधीन हमें रहना होता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति अगर हम किसी कारण से हमारे रिलेशन में कुछ कटुता आती है, निस्नेहता आती है, तो वो भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। उसका कारण एक सुंदर कारण बताते हैं कि भेदकैः सुतरां स्नेह क्रियते प्रभोः निस्नेहतां न प्रकाशेत तत्प्रकाशनात् सौ प्रभुर्जात अवसरैः भेदकैः सुतरां निस्नेह क्रियते। उस प्रभु के या स्वामी के द्वारा जो हमें अवसर मिलने वाले होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे और वो जो निस्नेहता होती है वो और बढ़ती है, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहिए। और दूसरा कारण वो देते हैं कि जो हमारा शुभ चिंतन न करने वाले लोग होते हैं, अशुभ चिंतने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के चीजों को खोजते ही रहते हैं। तो ये अगर चीजें उनको पता होती है तो उसका वो गलत उपयोग कर सकते हैं और उससे हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये चीजें हमेशा प्रकाशित नहीं करनी है, उनको पब्लिश नहीं करना है, सबको नहीं बताना है। नेक्स्ट, जनस्य आशयम आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तथा एव अनुवर्तेत प्राराधन पंडिता। जनस्य यानी किसी व्यक्ति का यानी व्यक्तियों का आशय क्या है, उनके मन का क्या आशय है, क्या विचार है, उनके मन में क्या चल रहा है, आलक्ष्य उसको समझते हुए, यो यथा परितुष्यति जो व्यक्ति जिस तरह से संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, तम उस व्यक्ति को, तथा एव उस तरह से, अनुवर्तेत उसी तरह का बिहेवियर हमारा उसके साथ रहना चाहिए या उसको वैसे ही संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पराराधन पंडित कहते हैं। तो किसी को संतुष्ट कैसे रखा जा सकता है, किसी को प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि दान प्रिय वचन आदि ना। अगर किसी को कुछ चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो वो देकर उनको प्रसन्न रखा जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। कुछ नहीं चाहिए तो एटलीस्ट प्रिय वचन अच्छा बोलकर, कुछ दो वाक्य अगर हम अच्छा बोले उनके साथ तो उससे भी वो संतुष्ट हो सकते हैं। या किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है और सिर्फ मान सम्मान देकर भी, उनका आदर करके भी कुछ व्यक्ति को हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे हो सकता है वैसे सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट रखना है। इसका फायदा हमें हमारे व्यवसाय में होता है, इसलिए सब करना है। और ऐसे करने वाले व्यक्ति को वो पराराधन पंडित कहते हैं। आगे, न पीड़ित इंद्रियाणी न च एतानी एतानी अति लालयेत, ये न शब्द है वहां पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। न पीड़ित इंद्रियाणी न च एतानी अति लालयेत, तो इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं कि इंद्रियों का बहुत ज्यादा पीड़न भी नहीं करना है, ना ही उनके बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने हैं। तो हेतुओं में हमने देखा, व्याधियों के हेतुओं में, कि साथ में इंद्रियार्थ संयोग ये हमेशा व्याधियों का हेतु होता है, चाहे वो शारीर व्याधि हो, मानस व्याधि हो, आगंतु हो, निज हो, सभी में ये एक हेतु हमें मिलता है। तो इंद्रिय निग्रह के लिए, इंद्रियों पर मन पर निरंतर नियमित नियंत्रण रखने के लिए कुछ लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं कि इंद्रियों को बहुत ज्यादा वो पीड़ित करते हैं या नियंत्रण में रखने के लिए
कुछ नियम जो होते हैं उनके बहुत ही कठिनाई से, कठोरता से वो फॉलो करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। नचे एतानी लालयत, या फिर इंद्रियों का बहुत ज्यादा खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए कि जो भी इच्छाएं होती है उन सभी को पूरा करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों भी प्रतियोग अयोग या मिथ्यायोग में जाते हैं, असात में इंद्रिया संयोग होता है, इस वजह से ये नहीं करना है। परंतु इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखना है, मध्यम मार्ग का स्वीकार करते हुए नियंत्रण में रखना है, इस तरह के आदेश हमें मिलते हैं। त्रिवर्ग शून्यम न आरंभम भजेत च अविरोधयन। कोई भी कर्म करते समय वो कर्म कैसा होना चाहिए, चाहे कायिक वाचिक मानसिक किसी भी तरह का कर्म हो, कर्म करने से पहले उसकी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसे आदेश हमें आचार्यों से मिलते हैं। तो कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो वो त्रिवर्ग शून्य ना हो। त्रिवर्ग का अर्थ वो देते हैं कि धर्म अर्थ और काम, धर्म प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और काम प्राप्ति, तीनों के तीनों, तीनों में से कोई दो या तीनों में से कोई एक, अगर कोई काम करने से हमें मिलता है तो ही वो काम करना है। तीनों में से एक भी नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई भी फायदा हमें वो काम करने से नहीं है, उल्टा नुकसान होता है, तो ऐसे कर्म को त्रिवर्ग शून्य कर्म कहते हैं। और ऐसे कर्म का आरंभ ही नहीं करना चाहिए, करना तो दूर की बात है। मतलब हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए, कर्म करने से पहले परीक्षण करना है कि उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है। अर्थ प्राप्ति होगी, धर्म प्राप्ति होगी, या कोई इच्छाएं हमारी जो होती है वो पूरी होगी, तो वो कर्म करना है, अदरवाइज नहीं करना है। भजे तम च अविरोधयन, दूसरा वाक्य है कि अगर वो कर्म हम करते भी हैं तो धर्म अर्थ और काम ये एक दूसरे के विरोधी ना हो। यानी अर्थ प्राप्ति कर रहे हैं परंतु वो अधर्म आचरण से कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं, इस तरह से अर्थ प्राप्ति ना करें। अधर्म से अर्थ प्राप्ति करना या अधर्म से सुख, सभी सुखों का उपभोग लेना, या अर्थ प्राप्ति किसी के पास नहीं है लेकिन सुख प्राप्ति के पीछे भागना, इस तरह के कर्म जो होते हैं ये परस्पर विरोधी होते हैं। तो ऐसा वो विरोध करने वाले भी ना हो एक दूसरे के लिए। एक कर्म करने से दूसरा नष्ट होता है, यानी अर्थ प्राप्ति करने से धर्मनाश होता है, या हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तो वो अर्थ भी किसी काम का नहीं है, इस तरह का इसका अर्थ है। नेक्स्ट, अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमाम। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी विचार हम करते हैं, वो किसी भी एकांतिक तरह के विचार ना हो। कोई भी मत हमारा होता है या विचार होते हैं, कोई हमारा आचरण होता है, वो किसी भी तरह से एकांतिक ना हो, एक्सट्रीम बिहेवियर या एक्सट्रीम ओपिनियंस हमारे नहीं होने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं कि अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेशु मध्यमाम। सभी धर्म, सभी कर्म, सभी विचार, आचरण वगैरह है, आहार, इवन आहार और विहार भी है, उनके प्रति भी हमें एकांतिक नहीं रहना है, मध्यम मार्ग का अवलंब करना है। इससे आसक्ति से दूर हो सकते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, इन सभी से दूर हो सकते हैं। तो कुछ थोड़ा सा जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद होता है, इस तरह का ये हमें लगता है। टीकाकार कहते हैं कि सर्व आचार्येषु मध्यम मार्गम अनुवर्तित। सभी प्रकार हमारे जो आचार होते हैं उनके प्रति मध्यम मार्ग का अनुपालन करना चाहिए। न एकत्र आसक्तिम कुर्यात, एकांतिक आसक्ति उसके प्रति नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग रखना चाहिए। राग द्वेष रहिताम बुद्धिम अनुसरेत, कोई भी कार्य करते समय हमारी बुद्धि में ये मानसिक विकार नहीं होने चाहिए, तो उसको मध्यम मार्ग वो कहते हैं। क्योंकि राग की वजह से बहुत ज्यादा आसक्ति होगी और द्वेष की वजह से बहुत ज्यादा क्रोध वगैरह होगा, इस वजह से दोनों भी करना उचित नहीं है, इसलिए मध्यम मार्ग का स्वीकार करना है। नेक्स्ट, वैयक्तिक स्वास्थ्य के बारे में या स्वच्छता के बारे में अगला श्लोक है कि नीच रोम नख श्मश्रु निर्मल अंग्री मलायन स्नानशील सुसूरभि सुवेशो अनुल्बण ज्वल। तो नीच, नीच का अर्थ वो देते हैं कि छेदेन कार्यम, यानी इनका छेदन हमेशा करना चाहिए। रोम, नख, श्मश्रु, व्याख्या भी देते हैं कि शरीर पर, त्वचा पर जो बाल होते हैं उनको वो रोम कहते हैं, केशों को रोम कहते हैं। रोम शब्देन केशा अपि क्रूयन्ते, ऐसा हेमाद्रि कहते हैं। आंघ्री शब्द का अर्थ होता है पाद, इनको हमेशा स्वच्छ रखना है। कालावधि यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन चरक संहिता में या अन्य ग्रंथों में हमें इस तरह के रेफरेंसेस मिलते हैं कि पक्ष में यानी 15 दिन में 3 बार ये सब करना है। नीच रोमन अखश मशरूह। अगला वाक्य है निर्मल आंघ्री मलायन, आंघ्री यानी पाद
और मलायन, सभी जो मलायन बताए जाते हैं, ऊर्ध्वज अत्रुवत है या अधः शरीर में जो भी मलायन है, मल मूत्र के द्वार है, या जो जो इंद्रियों के स्थान है जहाँ से मल बहिर्मुख स्रोत से, जहाँ से मलों का स्त्राव होता है, मल निकलते रहते हैं, उन सभी को हमेशा स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है। मलों का स्त्राव होता है तो उनको हमेशा क्लीन रखना है। अनेक व्याधियों के वो कारण हो सकते हैं। मलों के कारण अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, अस्वच्छता के कारण इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए वो हमेशा क्लीन रखने हैं। स्नानशील, नित्य स्नान करना है। स्नान के बेनिफिट ऑलरेडी इस अध्याय में हमने देखे हुए हैं पहले। तो कितनी बार स्नान करना है उसके बारे में वो कहते हैं कि कालद्वये अपि स्नान निष्ठ। चरक संहिता में उस तरह का एक रेफरेंस मिलता है कि द्वयो कालौ उपस्पृशेत, दो काल, दो समय, दिन में दो समय उपस्पर्श करना है। पानी का उपस्पर्श यानी स्नान करना है। उपस्पर्श यानी शब्दशः अर्थ नहीं लेना है। कई सारे लोग इसका शब्दशः अर्थ लेते हैं कि उपस्पर्श यानी सिर्फ स्पर्श करना है, 5-10 स्पर्श पानी का यानी सिर्फ पैर पर 2-4 बूंद डाल गए मतलब पैर शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। उनको पूरी तरह से धोना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है, अच्छी तरह से स्नान करना है। स्नानशील सुसुरभि, सुगंधी जो द्रव्य होते हैं उनका शरीर पर धारण करना है। गंध जो होता है वो मन को प्रसन्न करने वाला होता है, दुर्गंधी का नाश करने वाला होता है। इवन ग्रीष्म ऋतुचर्या में भी और इवन पित्त की चिकित्सा में भी सुगंधी द्रव्य का उपयोग होता है, जो मानसिक क्रोध और तीक्ष्णता जो होती है उसको नाश करता है, इसलिए सुगंधी द्रव्य का उपयोग करना है। उस समय गंधम माल्यादि धारण किया जाता था, अभी के समय में जो अलग अलग उपाय होते हैं उनको हम कर सकते हैं। वेश हमारा कैसा होना चाहिए, तो सुवेश, कपड़े अच्छे होने चाहिए। जीर्ण मलिन इस तरह के वस्त्रों का धारण नहीं करना है, जो अच्छे साफ किए हुए हैं, स्वच्छ है, को धारण करें। वेश हमारा अनउल्बण होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क कपड़े हैं या बहुत ज्यादा जिसको हाईलाइट हो सकते हैं इस तरह के वो कपड़े ना हो। अनउद्धत वेश, ऐसी टीका वहां पर अरुण दत्त करते हैं। अनुद्धत का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा रूड नहीं है, हार्श नहीं है, या जो सभी में एकदम उठकर दिखता है, इस तरह का वो वेश नहीं होना चाहिए। सौम्य, इस तरह के वो कलर कपड़ों के होने चाहिए। धारय सततम रत्न सिद्ध मंत्र महा औषधि ही, शरीर पर हमेशा इनका धारण करना है, सतत यानी कंटिन्यूअसली। रत्न का धारण करना है, सिद्ध मंत्रों का धारण करना है, महा औषधियों का धारण करना है। तो कुछ आगंतु व्याधि होते हैं उनसे रक्षण के लिए, कुछ अदृश्य शक्तियां होती है, कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं उनके उनसे रक्षण के लिए, या ग्रह बाधा वगैरह होती है उनसे रक्षण के लिए इनका धारण शरीर पर करना उचित होता है। निशीचे आत्तेय के कार्य दंडी मौली सहायवान। निशी यानी रात्रि के समय में, आत्तेयिक कार्य यानी आत्तेयिक कार्य की व्याख्या वो देते हैं कि अत्यय इति कृच्छ्रम यत् कार्यम काल प्रतीक्षाम न सहते तद अत्ययिकम। ऐसा कोई कार्य जो काल की प्रतीक्षा सहन नहीं कर सकता है, यानी जिसमें थोड़ा सा भी समय बिताना पॉसिबल नहीं हो सकता है, जो तुरंत करना होता है उसको अत्ययिक कार्य कहते हैं। तो ऐसे समय में, रात्रि के समय में अगर बाहर निकलते तो, अत्ययिक कार्य के समय अगर बाहर निकलते तो, ऐसे सभी कार्यों में दंडी मौली और सहायवान ये हमेशा साथ होने चाहिए। तो ये क्यों साथ होने चाहिए, उसके स्पष्टीकरण सुश्रुत संहिता में भी मिलता है कि सरीसृप व्याल विषाणिभ्यो भयापहम श्रम स्खलन दोषग्नम स्थविरे च प्रशस्यते। दंड वगैरह हमारे हाथ में होता है तो रास्ते पर चलते समय जो प्राणी वगैरह आते हैं, कुत्ता वगैरह है, सांप वगैरह है, तो उनको दूर किया जा सकता है। अभी के समय में कुत्ते वगैरह आते हैं, या इवन रास्ते पर जा रहे हो, अकेला व्यक्ति है, रात का समय है, तो चोरी वगैरह की घटनाएं बहुत होती है, तो ऐसा कोई शस्त्र साथ में होता है तो उसका फायदा होता है। उबड़ खाबड़ रास्ता है तो वहां पर स्खलन का खतरा रहता है, नीचे गिरने का खतरा रहता है, तो इससे सहारा मिलता है, इसलिए दंड वो साथ में होना चाहिए। दंडी मौली यानी शिरोवेष्टन, सिर पर किसी तरह का कोई कवरिंग होना चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग होना चाहिए। बाइक अगर अभी के समय में बाइक पर हम ड्राइविंग करते तो हेलमेट वगैरह होना ये कंपलसरी है। सहायवान किस लिए साथ होना चाहिए, तो अनेन अपि चित्त अवष्टम्भ, ऐसा वो कहते हैं कि सहायवान अगर साथ होता है तो चित्त अवष्टम्भ रहता है, यानी मन को एक सहारा रहता है, एक सपोर्ट रहता है कि हमारे साथ कोई तो भी एक सहायक व्यक्ति है। जो भय होता है वो मन में नष्ट हो जाता है, इसलिए सहायवान हमेशा साथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट, स आतपत्र पदत्राण विचरित युग मात्र धूप। अभी के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विचरित युग मात्र धूप, चलते समय थोड़ा सा आगे देखकर चलना चाहिए।
कई बार होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो आगे न देखने की वजह से मोबाइल में देखकर रोड क्रॉस किया जाता है, ड्राइविंग किया जाता है, इस वजह से होते हैं। तो ये जो सारे उपाय यहाँ पर दिए हैं ये आगंतुक दुखों के कारण उनसे प्रिवेंशन के सभी उपाय हैं। इसी तरह से आगंतुक दुख ना हो या वो व्याधि निर्माण ना हो, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, अपघात वगैरह ना हो, इसलिए ये सभी उपदेश दिए होंगे। आतपत्र, आतपत्र का अर्थ होता है कि छतरी वगैरह धारण करना। तो गर्मी से, उष्ण यानी धूप से, बारिश से बचने के लिए हमेशा साथ होना चाहिए। पदत्राण होना चाहिए। पदत्राण का बेनिफिट भी कहते हैं कि मारुतस्य अनुलोम्याय कुडस्तंभ श्रमापहम। पदत्राण अगर अच्छा है तो पैरों में जो श्रम होता है वो नहीं होगा, खुड़े जैसे व्याधि नहीं होंगे, वायु का अनुलोमन होता है यानी वात का प्रकोप नहीं होगा। अन्वर्थ संज्ञम पादत्रम बल बलद्रुक शुक्र रक्षणम। पादत्राण ये बल रक्षण करने वाला होता है, दृष्टि का रक्षण करने वाला होता है, शुक्र का रक्षण करने वाला होता है। तो इस तरह के बेनिफिट उसके वो बताए जाते हैं। वर्ण्य होता है, नेत्रहित करने वाला होता है। ये छत्र के बारे में बताया कि छत्र ये वर्ण्यम होता है। तो उष्णता का यानी गर्मी का, धूप के कारण वर्ण बिगड़ता है, पोल्यूशन के कारण बिगड़ता है, तो इसलिए छत्र उससे बचाता है। नेत्र हितम भी है, वात वर्षा आतप हितम। चैत्य पूज्य ध्वज अशस्त्र छाया भस्मतुष अशुचिन न आक्रामित शर्करा लोष्ट बलि स्नान भुवन। तो ये जो स्थान बताए हैं ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है, उनको क्रॉस नहीं करना है, वहां से नहीं जाना है, इस तरह का वो उपदेश है। अलग अलग व्याख्या ग्रंथकारों ने या टीकाकारों ने उसके बारे में दी है कि चैत्य यानी ऐसा कोई वृक्ष जिस पर किसी देवताओं का अधिष्ठान होता है या ग्रहों का अधिष्ठान होता है। पूज्य यानी गुरु पितृ वगैरह जो होते हैं उनको उनके बीच में से नहीं जाना चाहिए, वो अपमानजनक होता है। या उनको टाल कर नहीं जाना है, अगर जाना भी है तो उनको वही विनम्रता पूर्वक नमस्कार वगैरह करके जा सकते हैं। तो हो सके तो उनको टालना है, उनके बीच में से जाने को टालना है। और शस्त्र का अर्थ वो बताते हैं कि जहाँ पर चंडाल आदि रहते हैं, कि भूत पिशाच वगैरह रहते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। उनकी छायाम न आक्रमित, उन प्रदेशों के आसपास से भी नहीं जाना है जहाँ पर बहुत सारा भस्म है, तुष वगैरह पड़े हुए हैं, या अशुचि स्थान है कि जहाँ पर मलमूत्र पड़ा हुआ है, गंदगी है, ऐसे स्थान पर नहीं जाना है। इस तरह के ये अ, शारीरिक स्वच्छता या मानसिक आरोग्य के बारे में या इवन आगंतुक के बारे में भी ये सभी नियम यहाँ पर दिए हैं। आगे कहते हैं नदीम तरेत न बाहुभ्याम न अग्निस्कंधम अभिव्रजेत संदिग्ध नावम वृक्षम च न आरोहित दुष्टयान। और फिर से उपघात वगैरह टालने के लिए आगंतुक जो कारण होते हैं वो सब अवॉइड करे, इस तरह का ये उपदेश है कि नदीम न बाहुभ्याम तरेत, तैरना, तरेत यानी स्विमिंग। कोई बड़ी नदी है जिसका प्रवाह बहुत तेज है तो ऐसी नदी को तैर कर नहीं क्रॉस करना चाहिए। न अग्निस्कंधम अभिव्रजेत, अग्निस्कंद है, बहुत बड़ी आग लगी है तो उसको क्रॉस, उसमें नहीं प्रवेश करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। कोई संदिग्ध नाव है कि जिसके बारे में पता नहीं है, जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, खराब हो चुकी है, पुरानी है, तो उस पर भी आरोहण यानी प्रवास नहीं करना है। किसी वृक्ष पर भी बिना कारण, जरूरत नहीं है तो आरोहण नहीं करना है। दुष्टयान पर भी, दुष्टयान यानी कोई खराब वाहन है, पुराना है, जिसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो उस पर भी प्रवास नहीं करना है। तो सभी अपघात के कारण होते हैं वो टालने के लिए इस तरह के ये उपदेश हैं, आगंतुक व्याधियों को टालने के लिए। न असंवृत मुख कुर्यात क्षुति हास्य विजृंभणम। न कुर्यात, ये कार्य नहीं करने हैं। कैसे नहीं करने हैं? असंवृत मुख, संवृत यानी संवरण करना यानी आवरण करना। मुख को आवृत करते हुए, सिर्फ मुख ही नहीं तो नासा को भी, मुख और नाक को अच्छी तरह से कवर करके ही ये सभी करने हैं। श्रुति यानी क्षवथु, छींकना, स्नीजिंग। हास्य यानी हंसना, और विजृंभण यानी जम्बाई देना, यॉनिंग। तो सभी कार्य ये हमने कोविड के समय में देखा ही है कि इनसे क्या होता है। तो वो सब टालने के लिए इनको असंवृत नहीं करना है। तो हाथ से या रुमाल से, कपड़े से इनको कवर करना है और फिर बाद में ये कर्म किए जा सकते हैं। नासिकाम न विकुष्णियात न अकस्मात विलिखित भुवम न अंगई चेष्टेत विगुणम न आसित उत्कटश्चिरम। यहाँ तक ये जो दिए हैं वो सभी थोड़े से बैड मैनर्स माने जा सकते हैं, इस तरह की वो उपदेश है कि नासिकाम न विकुष्णियात अकस्मात। अकस्मात का अर्थ वो देते हैं कि कारणम विना, बिना किसी कारण के नासिका, या सिर्फ नासिका तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर नीचे कहते हैं कि नासिका छिद्र उपलक्षणम, नासिका का छिद्र है तो सिर्फ उपलक्षण मात्र बताया है। उसके साथ साथ अन्य जो भी स्रोत मुख होते हैं, जैसे गला है, मुख है, कर्ण है, नासिका है,
स्रोतस हैं, दशन, अक्षि, विवर यानी नेत्र वगैरह ऐसी जगहों पर बिना कारण बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको नाखूनों से या उंगलियों से या किसी चीजों से खुरेचना नहीं चाहिए। तो अलग अलग कारण उसके हो सकते हैं, कहीं पर इंजुरी हो सकती है, कहीं पर इन्फेक्शन हो सकता है, हमें यह है तो वो दूसरों को कैरी हो सकता है, हमारे हाथ पर कुछ है तो वो शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। नासी काम न विकुष्णियात, अकस्मात, अकस्मात न विलिखित भुवम, बिना किसी कारण के जमीन को खुरेदना, बैठे कहीं पर और जमीन वगैरह मिट्टी खेल रहे हैं तो इस तरह से बिहेवियर नहीं करना, ये बैड मैनर्स माने जा सकते होंगे। न अंग ही चेष्टेत विगुणम, अंगों से विगुण चेष्टाएं नहीं करनी है, बिना कारण से हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आंखों को भुवों को इधर उधर घुमाना, इस तरह की जो चेष्टाएं होती हैं जिनका कोई कारण नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। न आसीत उत्कट चिरम, उत्कट आसन में पैरों पर बटक्स को नीचे न टिकाते हुए इस तरह से लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। उसके रीजन में वो देते हैं कि अर्श रोगादि उत्पत्ति है, अर्श रोग के हेतुओं में एक आसन बताया जाता है, तो इसका एब्डोमिनल प्रेशर भी इसके कारण बढ़ता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या जिनको पहले से जॉइंट में पेन है उसमें और भी उसमें विकृतियां हो सकती है, इसलिए इस तरह का आसन ना करें। देह वाक चेतसाम चेष्टाम प्राक्षरमात विनिवर्तेत, एक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय लिए कि प्राक्षरमात, प्राक यानी पहले, श्रमात यानी श्रम से पहले, विनिवर्तेत इन सभी चीजों को बंद करना है, अवॉइड करना है, या अगर वो कोई कर्म कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करना है वहां पर। कौन कौन से हैं? तो देह वाक चेतसाम चेष्टा, चेष्टा, चेष्टा शब्द तीनों को लगाना है, देह चेष्टा, वाक चेष्टा और चेतसाम, यानी शरीर के द्वारा किए जाने वाला कोई भी कर्म, चलना है, दौड़ना है, व्यायाम, इवन व्यायाम करना भी क्यों ना हो, या कोई शारीरिक कष्ट किया जा रहा है काम के लिए, ट्रैकिंग कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो कोई भी शारीरिक कर्म है, श्रम उत्पन्न होने से पहले, थकान होने से पहले उसको बंद करना है। वाचिक म्हणजे वाचिक में बोलना, ऊंची आवाज में लंबे समय तक बोलना, उससे भी श्रमश्वास उत्पन्न होता है, तो श्रम उत्पन्न होने से पहले उसको रोकना है। चेतसाम चेष्टा, मानसिक अत्यंत चिंतन करने से भी श्रम, मन में थकान उत्पन्न होती है, तो वो भी श्रम से पहले उसको बंद करना है। न ऊर्ध्व जानु चिरम तिष्ठेत, ये देखा हमने उत्कटक आसन में कि ऊर्ध्व जानु अवस्था में लंबे समय तक नहीं बैठना है। तो प्राक श्रमात विनिवर्तित, ये अब हेतु मिलता है कि श्रमश्वास ये जो है उरक्षत का हेतु होता है, उरक्षत से राजेशमादि व्याधि होते हैं, उनमें भी वो हेतु हमें मिलता है। या इवन देह से, वाचा से, मन से किए जाने वाले जो साहस होते हैं उन सभी साहसों का त्याग करना चाहिए। ऐसे अभी इसी अध्याय में हमने व्यायाम के समय में देखा था कि सर्वम साहसम त्यजेत, सभी प्रकार के साहसों का त्याग करना है। तो अति प्रमाण में अगर ये कर्म किए जाते हैं तो वो साहस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको टालना है। नक्तम सेवेत न द्रुमम, रात्रि के समय किसी पेड़ पर नहीं चढ़ना है। तथा चत्वर चैत्य अंत चतुष्पथ सुरालयान सून आठवी शून्य गृह अश्मर, गृह शून्य गृह एक शब्द है, सून आठवी शून्य गृह श्मशानानि दिवा अपि न, अब यहाँ पर क्रियापद नहीं दिया है, तो वो कहाँ से लगाना है? तो पहले वाक्य में जो दिया कि सेवेत, तो दिवा अपि न सेवेत, अपि शब्द का अर्थ होता है उन पर भी, यानी दिन में भी। तो दिन में भी अगर इन स्थानों पे नहीं जाना है तो रात में जाने का तो सवाल ही नहीं आता है, तो दिन में भी नहीं जाना है, रात को भी नहीं जाना है। तो इनकी व्याख्या ऑलरेडी पहले दे चुकी है, यहाँ पर भी टीकाकारों ने दी है कि चत्वर है, चैत्य है, या अंतस्थल है, चतुष्पथ है, सुरालय वगैरह है। सुरालय का अर्थ है यहाँ पर सुरा का स्थान, ऐसा नहीं है, मंदिर है, या सूर्य यानी देव वगैरह उनका आलय। कुछ ट्रांसलेशन में उसका अर्थ मध्यालय ऐसा भी किया जाता है, तो वो अर्थ गलत है। ऐसे स्थानों में रात को अकेले प्रवेश नहीं करना है, वहां पर नहीं जाना है। अलग अलग आगंतुक कारणों को अवॉइड करने के लिए इस तरह का ये उपदेश होगा। सर्वथा इक्षित न आदित्यम न भारम शिरसा वहेत न इक्षित प्रततम सूक्ष्मम दीप्त मेद्य अप्रियाणी च, सर्वथा यानी संपूर्णतः, आदित्यम न इक्षेत, आदित्य यानी सूर्य, इक्षित यानी देखना, उसका इक्षण यानी देखने की क्रिया नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह से सूर्य की तरफ नहीं देखना है, ऐसा उसका अर्थ है। टीकाकार कहते हैं कि उदयंतम अस्तम यांतम प्रतिमागतम
उत्परक्तम वा न इक्षेत, कि जब भी सूर्य का उदय हो रहा हो या उदय का अंत हो रहा है, यानी उदय के कुछ समय बाद अस्त हो रहा है ऐसे सूर्य को, या जो किसी प्रतिमा के स्वरूप में हमें दिख रहा है, कहीं पर रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा है पानी में, आईने में, किसी खिड़की के कांच वगैरह में, तो उसको डायरेक्टली नहीं देखना है। ये नेत्र का, चक्षुरेंद्रिय का अतियोग हो सकता है, चक्षुरेंद्रिय पर उसका दुष्परिणाम हो सकता है। न भारम शिरसा वहेत, कि सिर पर बहुत बोझा उठाकर नहीं जाना है, उठाना भी नहीं है और लेकर कहीं और जाना भी नहीं है। वात प्रकोप के हेतु में हमें कई व्याधियों में ये मिलता है। मन्या प्रदेश के, शिरो प्रदेश के अनेक विकृतियां इसमें इसके कारण हो सकते हैं। न इक्षेत प्रततम सूक्ष्मम दीप्त मेध्य अप्रियाणी च, ऐसे वस्तुओं को प्रततम न इक्षेत, प्रतत यानी कंटिन्यूअसली, सतत, लगातार इनको नहीं देखना है। तो जो दृश्य सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म दृश्यों को वारंवार कंटिन्यूअसली नहीं देखना है। हेमाद्री इसकी व्याख्या करते हैं, प्रततम इति विस्फारित अक्षम, आंखों को बड़ा करके, डायलेट करके किसी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु की तरफ कंटिन्यूअस नहीं देखते रहना है। दीप्त पदार्थ या कोई सब्सटेंस है कि जो बहुत ज्यादा दीप्त है, यानी प्रकाशमान है, बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश युक्त है, उसकी तरफ भी कंटिन्यूअसली नहीं देखना है। अमेध्य दृश्य है, अमेध्य यानी जो मन को प्रसन्न नहीं करते हैं या मन में कुछ विकृतियां करते हैं, ऐसे दृश्यों को नहीं देखना है। उनके कारण मन में कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पर कुछ खराब वस्तु देख रही है तो उससे घृणा उत्पन्न होती है। कभी कभी इसी उससे वोमिटिंग जैसा हो सकता है, वोमिटिंग भी होती है, अत्यंत दुर्गंध होती है, वहां से जाते हैं उसको देखते हैं तो वोमिटिंग भी होता है किसी किसी को, या सिर दर्द होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह का दृश्य है तो उसके कारण कोई बच्चे ने देख लिया तो उसमें भय उसके मन में उत्पन्न होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिससे अमेध्य वस्तुओं को या घटनाओं को या क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए। जो अप्रिय है उनको भी नहीं देखना चाहिए, यही कारण उसके भी हो सकते हैं। मद्य के बारे में आगे दिया है कि मद्य विक्रय संधान दान आदानानि न आचरेत, किसी भी तरह का मद्य से संबंधित जो आचरण होता है वो करने के लिए यहाँ पर मनाही है। कि मद्य विक्रय, उसको बेचना, संधान यानी मद्य का संधान करना, निर्माण करना, दान और आदान, किसी को देना और किसी से लेना, ये पूरी तरह से न आचरित, नहीं करना है। सर्वस्य, टीकाकार कहते हैं कि सर्वस्य तु निषेधात क्रियादि व्यवहार छेद, सभी प्रकार के व्यवहार का उनका निषेध किया गया है। तो ग्रंथों में कई जगह पर मद्यपान के बारे में बताया जाता है कि प्रत्येक ऋतु में दिया है कि कौन से ऋतु में कौन सा मद्यपान करना है। औषधियों के बाद बताया जाता है, या चिकित्साओं में, इवन वात की चिकित्सा में है, कफ की चिकित्सा में अलग अलग प्रकार के मद्यों के बारे में बताया है। तो उसके बारे में टीकाकार कहते हैं कि मद्यस्य औषधेषु विधानात् क्रय पानयोः अनिषेधः, ये जो निषेध किया है वो सिर्फ सामान्य व्यवहार के लिए है, परंतु औषधि के स्वरूप में अगर मद्यपान का उपयोग करना है, मद्य का उपयोग करना है, तो वहां पर उसका निषेध नहीं है, क्योंकि वो योग्य प्रमाण में, योग्य समय तक, योग्य अवस्था में उसका पान किया जाता है, और जब उसकी आवश्यकता नष्ट हो जाएगी तो उसको बंद किया जाता है, इसलिए उसका निषेध औषधि के लिए नहीं करना है। सामान्य व्यवहार में मद्य के संबंधी सभी व्यवहार निषिद्ध है। कुछ नियम उन्होंने दिए हैं, या कुछ क्रियाएं या कुछ घटनाएं दी है कि जिनको पूरी तरह से त्यागना है। श्लोक नंबर 40 से आगे आते हैं। तो श्लोक नंबर 40, 41, वहां से लेकर श्लोक नंबर 44 तक कंटिन्यूअसली एक श्लोक दिए हैं, और लास्ट में 44 के लास्ट में एक ही क्रियापद दिया है, त्यजेत, यानी इन सभी का त्याग करना है। तो ये त्यजेत क्रियापद 41 से लेकर सभी को लगाना है, 40 से लेकर इन प्रत्येक शब्द को वो त्यजेत क्रिया पर यहाँ पर लगाना है। इसको कहते हैं योग तंत्र युक्ति, योग तंत्र युक्ति से इस सभी विषयों को समझना है। तो इन सभी का त्याग करना है। क्या क्या है? पूर्ववात त्यागना है, आतप, रज, तुषार, परुष, अनिल आदि, इन सभी का त्याग करना है। तो अलग अलग प्रकार के वात व्याधि, इंद्रियों के व्याधि, शिरोरोग, नेत्र रोग या नासा रोग, कर्ण रोग, इनकी वजह से उत्पन्न हो सकते हैं, या कोई फॉरेन बॉडीज या धूल वगैरह अंदर जाने जाने के कारण प्राणवश तोतस की व्याधि उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इनको हमेशा टालना है। पूर्ववात का अर्थ वो देते हैं कि पूर्ववात का अर्थ कई जगह पर ऐसा लिया जाता है कि पूर्व दिशा से आने वाली वायु या उत्तर दिशा से आने वाली वायु। तो शब्दशः अर्थ न लेते हुए उसका अर्थ हमें लेना है कि डायरेक्टली चेहरे पर जो हवा का झोंक आता है, हवा का फ्लो आता है, जैसे फैन के नीचे एकदम नीचे सोए हैं, एसी की ठंडी हवा आ रही है, या किसी बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हैं और वहां से खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है, वहां पे बैठे हैं, सो रहे हैं, और उसका डायरेक्टली कांटेक्ट हमारे इंद्रियों के साथ आता है,
तो उसके कारण नासाशोथ, कर्ण शूल वगैरह ये सारी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इनको टालना है। अनरुजु, क्षवथु, उद्गार, कास, स्वप्न, अन्न, मैथुनम त्यजेत। त्यजेत क्रियापद यहाँ पर भी लगाना है कि अनरुजु, दो शब्द है, अन और रुजु। रुजु शब्द का अर्थ होता है स्ट्रेट पोस्चर में, या प्राकृत अवस्था जो होती है शरीर के, उसको नृजु अवस्था कहते हैं। अनरुजु है विषम अवस्था में, टीकाकार कहते हैं कि विषम स्थित शरीर, उसको अनरुजु कहते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में ये कर्म नहीं करने हैं। स्नीजिंग या यॉनिंग है, सॉरी यॉनिंग नहीं है, शवतु है, उद्गार है, कास है, इन सभी को करते वक्त हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें एक तेजी से आक्षेप आता है। तो वो करते समय शरीर हमारा सीधा होना चाहिए। अगर गर्दन वगैरह टेढ़ी है तो उसमें दर्द बाद में हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, मन्या स्तंभ जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वप्न यानी सोते समय, अन्न सेवन यानी भोजन करते समय, मैथुन करते समय, जो शरीर की प्राकृत अवस्थाएं बताई हैं उसी अवस्थाओं में ये सभी कर्म करने हैं। अन्यथा वो वात वृद्धि का कारण हो सकता है। अलग अलग शरीर के अंग अवयवों में रचनात्मक या क्रियात्मक विकृतियों का वो कारण हो सकता है। इसलिए रुचु अवस्था में ही, स्ट्रेट पोस्चर में ही ये सभी कर्म करने हैं, प्राकृत पोस्चर में ही करने हैं। कुल छायाम नृपदृष्टम व्यालदंष्टि विषाणी न त्यजेत, इन सभी को टालना है। सभी आगंतु कारण है, आगंतु दुख प्रदान करने वाले कारण है, अपघात के कारण है। कुल छाया का अर्थ अलग अलग बुक्स में ट्रांसलेशन में अलग अलग दिया जाता है। कुल शब्द का अर्थ डिक्शनरी मीनिंग है कि बैंक ऑफ रिवर, किसी नदी का जो काट होता है उसको भी कुल कहते हैं, या मिट्टी से, मड से बनाई हुई कोई बड़ी दीवार है उसको भी कुल कहते हैं, या कोई पर्वत वगैरह है, पहाड़ी वगैरह है, उसके नीचे की जो जगह होती है, उसका जो स्लोप होता है बेस में, उसको भी कुल कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रदेश होते हैं, स्थान होते हैं, उनकी छाया मतलब उनके नीचे बिल्कुल नहीं रहना है। वहां पर घर नहीं होना चाहिए, वहां पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। तो ऊपर से वो गिरने के या लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस होते हैं, अपघात होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो नहीं करना है। ऐसा उसका आशय हो सकता है। नृपदृष्टम, राजा के द्वारा जिसका द्वेष किया जाता है या राजा का द्वेष करने वाला, ऐसे जो देश के विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी त्यागना है। व्याल, दंष्ट्री, विषाणी न, इस तरह के जो प्राणी होते हैं, हिंसक प्राणी वगैरह होते हैं, जंगली प्राणी होते हैं, उनको भी त्यागना है, उनके पास नहीं जाना है। हीन अनार्य अति निपुण सेवा विग्रहम उत्तम ही त्यजेत। त्यजेत क्रियापद फिर से यहाँ लगाना है। जो व्यक्ति हीन है, कुल से, शील से, आचार से, विचार से, अपने कर्म से, किसी भी तरह से अगर हीन है तो उनका सहवास नहीं करना है। जो अनार्य है यानी जिनका जिनका विचार, जिनका व्यवहार असाधु होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा आचरण या सहवास नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है, उनको त्यागना है। अति निपुण सेवा, अति निपुण यानी ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं कि जो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, या छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी संबंध नहीं रखना है। तेषाम सेवाम त्यजेत, सेवा इति सहवासः। उत्तमैः सह विग्रहम त्यजेत, विग्रहम उत्तमैः सह त्यजेत। हमसे हमसे जो कोई व्यक्ति उत्तम होता है, यानी ज्ञान से उत्तम है, बल से उत्तम है, शारीरिक बल से उत्तम है, मानसिक बल से उत्तम है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह से, किसी भी तरह का कोई झगड़ा या फाइट नहीं करना चाहिए। उससे नुकसान हमारा ही हो सकता है, इसलिए उनको त्यागना है। व्यक्तियों को नहीं त्यागना है, उस विग्रह को त्यागना है। संध्यासु अव्यवहार स्त्री स्वप्न अध्ययन चिंतनम, संध्या काल में ये सारे कार्य त्यागने हैं। अव्यवहार यानी भोजन नहीं करना है, मैथुन कर्म नहीं करना है, नींद नहीं लेनी है, सोना नहीं है, अध्ययन कर्म नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है। तो संधि काल में दिन के चर्या के अनुसार अलग अलग कार्य करने के लिए वो समय निश्चित होता है, तो उस समय में वो कार्य करने चाहिए, या ये कर्म करने के अलग अलग समय वो निश्चित होते हैं, उन समय में वो करने चाहिए। शत्रु सत्र गण अकीर्ण गणिका पणिकाशनम, अशनम शब्द सभी को लगाना है। शत्रु अशनम, सत्र अशनम, गण अशनम, अकीर्ण अशनम, गणिका अशनम, पणिका अशनम त्यजेत, और सभी को त्यजेत ये क्रियापद लगाना है। तो अशन यानी भोजन, ऐसी जगहों पर, ऐसे व्यक्तियों के पास से किसी भी तरह का भोजन मिलता है तो वो टालना है, उसका त्याग करना है। ग्रंथकारों ने इनके अर्थ दिए हैं कि शत्रु के पास से कोई भोजन नहीं लेना है। सत्र का अर्थ दिया है कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है वहां पर भोजन नहीं करना है। गण, गण यानी कथावाचक वगैरह जो होते हैं, या कहीं पर पिलग्रिमेज वगैरह जो होता है कि
वहां पर जैसे लंगर वगैरह होता है कि जो यात्रियों के लिए दिया जाता है, वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। गलत अर्थ से ये नहीं है, जिनको आवश्यकता है भोजन की उन्हीं के लिए वो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, तो जिनको आवश्यकता नहीं है उन्होंने वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। जिनको आवश्यकता है वो कर सकते हैं। दूसरा, ये भोजनों को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों का अलग अलग होता है। किसी का पुण्य प्राप्ति के लिए होता है, किसी का किसी उद्देश्य से किया जाता है, तो उस करना चाहिए ऐसा वो कहते हैं। टीकाकार उस तरह से वर्णन करते हैं। गणिका यानी वेश्या, उनके पास से भोजन नहीं करना है। पणिक यानी जो अ, बेचकर किसी वस्तु भोजन को बेचकर पैसा कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनके पास से भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह के वो नियम दिए हैं। तो बहुत सारे नियम हमें इसमें इस तरह से दिखाई देते हैं कि उस समय जब ये ग्रंथ निर्माण हुए उस समय की जो समाज रचना है उसके अनुसार ये नियम बनाए होंगे। अभी के समय वो लागू होंगे ऐसा नहीं है, उसका विचार हमने खुद करना है। गात्र वक्त्र नखैहि वाद्यम हस्त केशावधुननम। तो हाथ से, नख से, मुख से अलग अलग तरह के वाद्यों की आवाज नहीं निकालनी चाहिए। एक बैड मैनर से माना जाता है, इसलिए वो नहीं करना है। तोय अग्नि पूज्य मध्यन यानम धूम श्रवाश्रयम, इन चीजों को भी टालना है। तोय अग्नि पूज्य मध्यन यानम त्यजेत, इनके बीच में से प्रवास नहीं करना है, मतलब अपने यान को यानी अपने वाहन को वहां पर लेकर नहीं जाना है। पानी के बीच में वाहन को नहीं डालना है, आग के बीच में नहीं लेकर जाना है। पूज्य मध्य ना, कोई जगह है कि जो पूज्य है या कोई पूज्य व्यक्ति वहां पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनके बीच में वाहन लेकर नहीं जाना है। ये सारी चीजें त्यागनी है। धूमम शव आश्रयम, शव के आश्रय से निकलने वाला जो धूम है, या फिर किसी प्रेत का जो अंतिम दहन किया जाता है उस दहन से निकलने वाला जो धूम होता है उसको भी त्यागना है, उसके संपर्क में नहीं आना है। दुर्गंधी हो सकता है, इसलिए मद्यातिशक्ति विश्रम्भ स्वातंत्र्य त्रिशूच त्यजेत, मद्य की अतिशक्ति त्यजेत, यानी बहुत ज्यादा मद्य से संबंधित व्यवहार नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी उन्होंने बताया ही है। लेकिन मद्य के प्रति अति आसक्ति नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा मद्यपान नहीं करना है, कंटिन्यूअसली मद्यपान नहीं करते रहना है। विश्रम्भ स्वातंत्र्य स्त्रीशूच त्यजेत, स्त्रियों के प्रति विश्रम्भ और स्वातंत्र्य उनको नहीं देना, इस तरह का ये शब्दशः अर्थ निकलता है। फिर से उस समय की जो समाज रचना थी, उनके जो नियम थे, उनके अनुसार ये दिया होगा। आज के समय में ये लागू नहीं पड़ता है, तो इसलिए ग्रंथों में दिया है, फिर भी उसको हम इस ऐसे विषयों को हम टाल सकते हैं, ऐसे उपदेशों को हम टाल सकते हैं। उनको फॉलो करने की आवश्यकता है या नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने मत के या विचार के अनुसार डिसाइड करना है। अच्छा, इस तरह से ये सब संपूर्ण सदवृत्त उन्होंने यहाँ पर दिया है, ये सारे उपदेश यहाँ पर दिए हैं, और आगे उसको समराइज करने के लिए कहते हैं कि आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमतः अनुकुर्यात् तम एव अतलौकिके अर्थे परीक्षक। तो क्या क्या नियम बता सकते हैं, कौन कौन से उपदेश दे सकते हैं, सभी चीजें तो इसमें नहीं बता सकते हैं। प्रत्येक विषय को कुछ ना कुछ लिमिट होता है, तो सभी वस्तुएं नहीं बता सकते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन उपदेशों का वर्णन इन ग्रंथों में किया है, परंतु जो अनुक्त है उनके बारे में कैसे समझे, इसके लिए वो कहते हैं कि जो धीमान व्यक्ति होता है, उस धीमान व्यक्ति ने, धीमान यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति ने, उसके लिए संपूर्ण लोक ही आचार्य होता है। लोक यानी संपूर्ण सृष्टि में जो लोक होते हैं, लोक यानी पीपल नहीं, लोक यानी संपूर्ण सृष्टि, जो विश्व है, यूनिवर्स है, उसको लोक कहते हैं। और वो उसके लिए आचार्य होता है, एक शिक्षक की तरह होता है, गुरु की तरह होता है। यानी उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उनसे हम उन विषयों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सर्व चेष्टासु, सभी प्रकार की चेष्टाएं उनकी ऑब्जर्व करनी है और उससे हमें सीखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी चीजों का हमें पालन करना है, यह हमें खुद परीक्षा करके समझना है। आगे कहते हैं कि अनुकुर्यात्तम एव अतो लौकिके अर्थे परीक्षक। लौकिक अर्थ से इस लोक में जो जो विषय होते हैं, जो जो घटनाएं होती है, उन सभी का परीक्षण करते हुए किसको किसका पालन करना है और किसका त्याग करना है, ये खुद हमें समझना है। प्रत्येक विषय का वर्णन ग्रंथों में नहीं दे सकते हैं, अनुक्त विषयों के बारे में ये थोड़ा सा एडवाइस उन्होंने यहाँ पर दिया है। आगे कहते हैं आर्द्र संतानता त्याग काय वाक चेतसाम दम स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सदवृत्तम। संपूर्ण सदवृत्त को उन्होंने इन 3 4 5 शब्दों में समाविष्ट किया है कि आर्द्र संतानतः,
आर्द्र यानी करुणा संतानतः, अपने संतान के प्रति जो स्नेह करुणा एक किसी व्यक्ति के मन में होती है, इस तरह की स्नेह भावना प्रत्येक मनुष्य के बारे में या प्राणी के बारे में, सभी के बारे में वो मन में होनी चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए। काय वाक चेतसाम दमः, काया के द्वारा यानी शरीर के द्वारा, वाचा के द्वारा और मन के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन पर नियंत्रण हमेशा होना चाहिए। पूरी तरह से उनका दमन करना है ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन वो नियंत्रित होने चाहिए। अनियंत्रित कर्म कोई भी ना हो। स्वार्थ बुद्धि ही परार्थे, इसका अर्थ वो करते हैं कि किसी और व्यक्ति का कार्य भी अगर हम वो कर रहे हैं तो अपना कार्य है इस तरह से समझकर उसको करना है, यानी दूसरे के कार्य में भी अपना स्वार्थ है वो देखकर उसको करना है, इस तरह से उसको मदद करनी है। तो इस तरह से संपूर्ण सद्वृत्त को उन्होंने यहाँ पर समराइज किया है। नक्तम दिनानि में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भाग न भवति एवं नित्यम सन्निहित स्मृति, कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन और रात कैसे आ रहे हैं उनको देखते हुए उन प्रत्येक दिवस में प्रत्येक रात्रि में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है इनके बारे में जो परीक्षा करता है, देश के अनुसार, काल के अनुसार, वय के अनुसार, मानसिक अवस्थाओं के अनुसार हमें क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, उन सभी का विचार करता है और इस तरह से जो अपना वर्तन रखता है वो कभी दुख का भागी नहीं होता है। उसे किसी तरह के दुख यानी शारीरिक, मानसिक, निज आगंतुक किसी तरह के कोई विकार नहीं होते हैं, वो स्वस्थ रहता है। और इस तरह से स्वास्थ्य रक्षण के लिए ये सद्वृत्त का उपदेश वो करते हैं। इति आचारः समासेन, इस तरह से आचरण के नियम उन्होंने समास से, समास यानी संक्षेप में बताए हैं। तो इस ग्रंथों में जो दिया है उतना ही नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे नियम जो हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, सामाजिक नीति और नियमों के ग्रंथों में मिलते हैं, या अभी के समय में अलग अलग देशों के जो संविधान वगैरह होते हैं उनके अनुसार मिलते हैं, उन सभी का पालन करना चाहिए। तो समास से यानी संक्षेप में ये आचरण के नियम यहाँ पर सद्वृत्त में बताए हैं। यम प्राप्नोति समाचरण आयु आरोग्य ऐश्वर्यम यशो लोकांश शाश्वताम, जो व्यक्ति इनका सम्यक आचरण करते हुए इनका सम्यक आचरण करता है उस व्यक्ति को प्राप्नोति यानी प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? आयुष्य प्राप्त होता है, दीर्घायुष्य, आरोग्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और लोकांश प्राप्नोति, इस लोक के साथ साथ परलोक में भी उसको सुख प्राप्त होता है। इतना इस सद्वृत्त का फायदा है। तो इस तरह से ये अध्याय है और यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनो श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने दिनचर्या नाम द्वितीयोध्यायः। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Dr. Jayant, sir. थैंक यू मैडम। If anyone has any questions or doubt, please feel free to ask. Okay, Hello. moving forward. Hello, good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग। Sir, I have a doubt. यस। सर, जैसे कहा गया है कि शाम के समय अध्ययन नहीं करना है, तो उससे जैसे मैं स्वस्तवृत्त में लिखा भी गया है कि उसका कारण आयु का ह्रास होता है करके। तो फिर जैसे आज के समय में देखा जाता है कि शाम के 5 बजे तक कॉलेज ही होता है, तो अध्ययन करने के लिए शाम का समय ही मिलता है, तो इसे कैसे लिया जा तो सकता है फिर? इसका सबसे एक बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण, हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण हमारा आचरण जो नियम है वो बहुत सारी चीजें हमारी बहुत बदल गई हैं। पहले के समय में सूर्यास्त होने से पहले तक सभी कार्य किए जाते थे। घर में पहुंचना, बाहर के सभी कार्य खत्म करके घर में पहुंचना है, इवन भोजन भी सूर्यास्त के पहले तक कर लेना है, बाद में अध्ययन भी नहीं करना, ये सारे कारण होते थे। अभी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट अवेलेबल है, सभी साधन अवेलेबल है, इसलिए बाद में भी वो किया जा सकता है। एक ऐसा इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। और दूसरा है कि संधि समय में वो नहीं करना है। तो संधि ये जो है, संधि काल जो होता है उसमें ग्रहों का भी एक विशेष प्रभाव होता है। और दूसरा, उस समय में कुछ अन्य कार्य भी बताए जाते हैं कि संधि के समय में कुछ अन्य कार्य करने हैं, धार्मिक आचरण उनके अनुसार, तो वो करने के लिए वो समय होता है, इसलिए अध्ययन वगैरह वो सभी कर्म नहीं करने चाहिए।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि 5 बजे तक कॉलेज होता है इसलिए हमें अध्ययन नहीं करना है। तो जैसे हमारे पास साधन है, जैसी सुविधाएं है, उसके अनुसार हम उन विषयों को अ, उनका पालन कर सकते हैं। एक है कि आचार्य ने जो उपदेश यहाँ पर दिए हैं वो जैसे शब्दशः पालन करने चाहिए क्या, जैसे कि वैसे ही पालन करने चाहिए क्या। खुद वाग्भटी कहते हैं कि सर्वधर्मेषु अनुयायात प्रतिपदम मध्यमाम, मध्यम मार्ग का हमें अवलंबन करना चाहिए। चरकाचार्य भी कहते हैं सिद्धि स्थान के पहले दूसरे अध्याय में कि जो भी ग्रंथों में उपदेश दिए रहते हैं उनको एकांतिक पालन नहीं करना है। अपने बुद्धि से उनका हमें जो विचार है, बुद्धि से विचार करते हुए उनमें कम ज्यादा हम कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि शास्त्र के जो सिद्धांत है उनके प्रति कुछ गलत हम ना करें। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। सर, वन मोर डाउट। यस सर। सर, जैसे सूत्र में कहा गया है कि जो सूर्य होता है उसको हाँ सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, या कि उसकी प्रतिमा जिसमें डायरेक्टली दिखती है उसमें नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे हाँ। देखा जाता है कि जो सुबह सुबह लोग जो घूमने जाते हैं, हम्म। मतलब मॉर्निंग वॉक पे, वो हाँ वो सूर्य को देखते देखते हैं। रहते हैं। यस। तो तो फिर ये गलत हुआ कि सही हुआ सर? एक्चुअली उसका ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि चक्षुरेंद्रिय का अतियोग नहीं करना है, ऐसा उसका उद्देश्य हो सकता है। कि तीव्र प्रकाश होता है कंटिन्यूअसली, अगर हम उस पर उसकी तरफ देखेंगे तो, और रोज अगर ये व्यक्ति कोई काम इस तरह का कोई काम करता है तो फिर उसका दुष्परिणाम होगा। एक आध बार देखता है, थोड़े से समय के लिए देखता है तो उसका इतना ज्यादा परिणाम नहीं होगा। ठीक है। बहुत यस समय सर। तक, लंबे समय तक देखते हैं तो उसका परिणाम निश्चित ही होने वाला है चक्षुरेंद्रिय पर। इवन जो कर्म वगैरह किए जाते हैं, जैसे नेत्र तर्पण वगैरह किया जाता है, अंजन किया जाता है, तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि तीव्र प्रकाश को टालना है। अंजन जो यस। तीक्ष्ण शोधन करने वाले अंजन होते हैं उनको भी वो कहते हैं कि रात को करो। क्यों? क्योंकि जो दिन में सूर्य प्रकाश होता है उसकी जो तीव्रता होती है उसका दृष्टि पर विपरीत परिणाम हो सकता है। वो ना हो इसलिए फिर रात को वो कर्म करने हैं। तो चक्षुरेंद्रिय का अतियोग या असम्यक योग वो टालने के लिए उन्होंने उस तरह के वो उपदेश दिया होगा, ऐसा मेरा मत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, Shishir, for your question. Moving forward, I respectfully invite Dr. Santosh Gatne sir to kindly grace by his words and conclude today's program. He is Sachiv of Arogya Bharati, Paschim Maharashtra Pranta, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक सीनेट सदस्य तथा स्थायी सदस्य। अलॉन्ग विथ ही इज आयुर्वेद चिकित्सक एवं आयुर्वेद औषध निर्माता। सभी को नमस्कार। समापन के लिए मुझे नमस्कार सर। यह सुसंधि देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम सभी को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन डॉक्टर जयंत इंगली जी ने दिया है। मैं सबसे यह अपेक्षा रखता हूं कि हम इस दिनचर्या सद्वृत्त का पालन दूसरों को सिखाने के लिए सीखना है, ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए। वो सब कुछ स्वयं के आचरण में लाने के लिए इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आदर्श निर्माण होते हैं वह स्वयं से शुरुआत होते हैं। जिस आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार हम करना चाहते हैं, जिससे हमें अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, क्या सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करना इतना ही काफी है? तो यह सही नहीं है। यह जो अर्थ पुरुषार्थ है इसका आधार धर्म पुरुषार्थ है, जो इस सद्वृत्त में कहा गया है। तो धर्म वृत्त की दृष्टि से सद्वृत्त का पालन यही धर्म पालन है। नहीं तो आजकल डॉक्टर जिन जिन चीजों में दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे कि लाल किले के पास जो बम विस्फोट हुआ, लगभग 3000 किलो आरडीएक्स प्राप्त हुआ,
तो राष्ट्र विरोधी कृतियों में भी डॉक्टर सम्मिलित है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये तो सद्वृत्त है नहीं। हमारा यह जो भी स्वास्थ्य का संकल्पना है, यह सुसंस्कारित स्वास्थ्य की संकल्पना है जो आयुर्वेद कहता है, और इसी संकल्पना के साथ काम करते हुए आरोग्य भारती आगे बढ़ रहा है। आरोग्य भारती की इस राष्ट्रीय दृष्टि के साथ आप सब सहमत होंगे, सहमत होना ही चाहिए, ऐसी आप सबको विनती करते हुए मैं आज का मेरा समापन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Santosh sir. I take this opportunity to extend my heartfelt gratitude. We are genuinely grateful for the knowledge, experience, and guidance you shared with us. Thank you. Thank you so much, Dr. Jain sir. Along with thank you, Dr. Ashok Varshne sir, Dr. Rakesh Pandit sir, Dr. Sunil Joshi sir, Dr. Vinayak Kulkarni sir, Dr. Santosh Gatne sir, Dr. Manoj Kumar Chaudhary sir, and one and all who is present here. At the end थैंक of यू। session, to थैंक यू। invoke peace, एक मिनट harmony, मैडम। हाँ, ये अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं भी आरोग्य भारती के सभी मान्यवरों का यहाँ पर बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी क्षमता के अनुसार 1 घंटे के समय में मैंने इस विषय को रखने की यहाँ पर कोशिश की है। जैसा सर ने कहा अभी भी कि ये विषय सिर्फ पढ़ने या पढ़ाने का नहीं है, उसका आचरण हमें करना चाहिए। तो ये प्रत्येक वैद्य का कर्तव्य है कि इन विषयों को अच्छी तरह से समझकर अपने आचरण में उनको लाना है। मैं फिर से एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके डॉक्टर संतोष जी गटने सर और डॉक्टर मनोज चौधरी सर। थैंक यू। at the end of session, to invoke peace, harmony, and positive vibration, let us all come together with a calm mind and pure intention. So, I would like to welcome Dr. Padmaja for chanting Shanti Mantra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।